सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। गुरु गरीब नवाज बहुत जन्म बिछरे थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लिखे। कह रविदास आस लग जीवों, चिर भयो दर्शन देखे। ज्यों बोलावे त्यों बोले स्वामी, कुदरत कवण हमारी। साध संग नानक जस गायो, जो प्रभ की अत प्यारी। साध संग नानक जस गायो, जो प्रभ की अत प्यारी। ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਮਝਣ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਾਹ ਸੁਹੇਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਰੋ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਘਰ ਚੌਥਾ, ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਚਾਂਦਨਾ ਚਾਂਦਨ ਆਂਗਨ। ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਅੰਤਰ ਚਾਂਦਨਾ, ਆਰਾਧਨਾ ਆਰਾਧਨ ਨੀਕਾ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਆਰਾਧਨਾ, ਤਿਆਗਨਾ ਤਿਆਗਨ ਨੀਕਾ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਤਿਆਗਨਾ, ਮੰਗਨਾ ਮੰਗਨ ਨੀਕਾ। ਹਰ ਜਸ ਗੁਰ ਤੇ ਮੰਗਨਾ, ਜਾਗਣਾ ਜਾਗਨ ਨੀਕਾ। ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਮੈਂ ਜਾਗਣਾ, ਲਾਗਣਾ ਲਾਗਨ ਨੀਕਾ। ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਮਨ ਲਾਗਣਾ, ਇਹ ਬਿਦ ਤਿਸੈ ਪ੍ਰਾਪਤੇ। ਜਾਂ ਕੈ ਮਸਤਕ ਭਾਗਨਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਸਭ ਕਿਛ ਨੀਕਾ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਰਨਾਗਨਾ, ਇਹ ਬਿਦ ਤਿਸੈ ਪ੍ਰਾਪਤੇ।
ਜਾਂਕੈ ਮਸਤਕ ਭਾਗਨਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਸਭ ਕਿਛ ਨੀਕਾ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਰਨਾਗਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨਿੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬੰਦਾ ਵਡੇਰਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਵਡੇਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਦੇ ਮਾਂ ਲਈ ਰੋਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਉਹ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ, ਧਨ ਦੌਲਤ, ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ, ਪੁੱਤ ਪੋਤਰਿਆਂ, ਦੋਤਰਿਆਂ, ਪੋਤਰੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਕੁਛ ਲਈ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗਣਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਲੋੜਾਂ ਹੈ, ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨੀ। ਰੱਜ ਕੇ ਮੰਗ, ਰੱਜ ਕੇ ਮੰਗ। ਪਰ ਮੰਗਦਿਆਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ, ਕਿਤੇ ਉਹੀਓ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਮੰਗਦਾ ਰਵੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅੰਤ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕਿਤੇ ਉਹੀਓ ਕੁਝ ਨਾ ਮੰਗਦਾ ਰਹੀਂ। ਆਖਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਟੁਰ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਘਰ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਹਜ਼ੂਰ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗੂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਰੀਦਾ ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆਂ, ਇਤ ਨਾ ਲਾਏ ਚਿੱਤ, ਮਿੱਟੀ ਪਈ ਅਤੋਲਵੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋ ਸੀਮਿਤ। ਜੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਇਹ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸੰਭਾਲੇ। ਇਹ ਕੁਟੰਬ ਤੂੰ ਜੇ ਦੇਖਦਾ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ, ਸਾਥ ਤੇਰੇ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ ਤਿਸ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਚਿੱਤ ਲਾਈਏ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡਦੀ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਨੇੜੇ ਕਰ ਲਈਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਨਣੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗੂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ ਸਜਣਾ, ਜਾਗ ਲੇਹੋ ਨੇ ਮਨਾ ਜਾਗ ਲੇਹੋ, ਕਹਾਂ ਗਾਫਲ ਸੋਇਆ, ਜੋ ਤਨ ਉਪਜਿਆ ਸੰਗ ਹੀ ਸੋ ਵੀ ਸੰਗ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਦਾ ਵੀ ਵਿਛੋੜਾ, ਆਤਮਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈਣਾ। ਵੇਖੀ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਗਦਾ ਰਵੀਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਮੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਰੱਜ ਕੇ ਮੰਗ, ਪਰ ਮੰਗਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ ਭਈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਗਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਗਨ ਨੀਕਾ, ਹਰ ਜਸ ਗੁਰ ਤੇ ਮੰਗਣਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਈਆਂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਦਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਮੰਗ ਮੰਗਣ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਭਈ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੀ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੂੰ ਨਾ ਹੀ ਮੰਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲ ਆਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਲਿਆ ਵਿਣ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ, ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਕੈ ਦੁੱਖ ਦੇਖੋ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀਆ, ਉਤਰੇ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ। ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਸਿਮਰਨ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹਾਰਾ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਸਮਝੋ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੌਲਤ ਜਾਵੇਦ ਬਾਸ਼ਦ ਬੰਦਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਧਨ ਹੈ,
दौलत जावेद बाशद बंदगी, बंदगी कुन बंदगी कुन बंदगी। फिर तू बंदगी कर बंदगी कर बंदगी कर बंदिया, तेरा एक भी श्वास वाहिगुरू की याद तो बिना नहीं होना चाहिए। रज के कह वाहिगुरू, तू रज के कह सिमरन, तू रज के कह अपने परमेश्वर के नाम नू। तैनू सुबह वक्त मिले वाहिगुरू कह, तैनू रात नू वक्त मिले वाहिगुरू कह, तैनू कम करदियां वक्त मिले वाहिगुरू कह। तू एक घड़ी पल भी तू अपने मालिक के चरणों विचों ना टुटी। कुछ एक गल्लां बहुत जरूरी समझण वालियां ने। अज हजूर ने कृपा की, कहते गुरबाणी नूं एक पन्ने तो लैके 1430 पन्ने तक जिथों मर्जी पढ़ो, इको एक सुनेहा तेन मिलेगा। वो सुनेहा यह भी जितना भी अदब सत्कार है वो नाम जपण वाले का है। दिलों मोहब्बत जिन से ही सचिया, जिन मन होर मुख होर से कांडे कचिया। शब्दों विचों मैं कुछ कुछ पंक्तियां साझियां करनियां ने। आप लिए लड़ लाए दर दरवेश से, तिन धन जनेंदी माओ आए सफल से। जेड़ा रब्बी इबादत करदा है, हजूर कहंदे धरती ते आउणा ही उन्हां दा सफल है। मेरा ते जी करदा है ओदी मां दे चरनां ते मत्था टेकदे आ। मां तू किन्ना चंगा अपने पुੱਤ ਨੂੰ अपने बच्चे ਨੂੰ सिक्ख्या दित्ती है भई इस बच्चे ने सारी जिंदगी वाहिगुरू वाहिगुरू अपनी जुबान तो कीता है, परमेश्वर दा नाम जपिया, रज के जपना चाहिए। तो बेनती कर रहा सा, जितना भी अदब सत्कार है वो रब्बी बाणी नूं पढ़न वालियां दा है, परमेश्वर दा सिमरन करन वालियां दा है। जितनी भी तुहीन है, कोई ठोकर बजदी है, कोई सट बजदी है, तो उस मनुख नूं सट बजदी है जिहड़ा सिमरन भी होना है। गुरुदेव ने बड़ा प्यारा बचन आख दिता, विसरिया जिन नाम से भोए भारती है। जिन्होंने रब की याद भुल गई, वो तो मैनू प्रतीत होंदा भी धरती ते भार ने। गुरुदेव का एक बचन होर बड़े ध्यान नाल समझो जी। साहिब आखदे ने, कहंदे तेरे सामने मैं 2 तस्वीरां रखण लगा है, तू मर्जी है जिहड़ा मर्जी रास्ता चुन लै, पर मैं तेनू दसन लगा है। हो सकता तेरिया अखां च समर्था ना होवे, वो बाहरी तौर पर तू वेख सकदा होवे, पर मैं तेनू अंदर की झात मरोनी चाहुंदा। तेरे कोल अख नहीं तो गुरु बड़ी अख ले लै, गुरु को अख लैके विचारीए। हजूर कहते 2 तस्वीर गुरु तेग बहादुर साहब जी के पावन पवित्र बाणी विच ने। बड़ी तवज्जो दे के समझो इस गल मैं बेनती करा। मेरे मालिक आखते ने, कहते एक तस्वीर मैं तेनों ओहदी विखाउणा है जिहदे अंदर रब की याद नहीं, जिहदे अंदर परमेश्वर का सिमरन नहीं, जिहदे अंदर निरंकार की याद नहीं। एक तस्वीर मैं तेनों ओहदी विखाउणा है। मर्जी तेरी है, तेरा अपना अंदर है, जिहो जिहा मर्जी बना ले, किसी नूं की तरह हो सकता है। दूजी तस्वीर ओहदी है जिहदे अंदर परमेश्वर का नाम है। दोवें तस्वीरां मैं तुहाडे सामने रखा। हजूर का पावन पवित्र गुरवाक है, एक भगत भगवान जे प्राणी कै नाहे मन, जैसे सूकर सुआन नानक मानो ताहे तन। एक गल होर इत्थे चेते विच रख लिओ जे, जे मैनू कोई कुत्ता या सूर कह देवे ना, मैं गल पै जांगा अपनी समर्था के अनुसार, ਉਹਦੇ ਨਾਲ लड़न झगड़न की कोशिश करांगा। तू मैनू शब्द क्यों कहे? पर हजूर कहिंदे, सजना तेरे कोलों गुरु ग्रंथ साहब की आवाज़ बंद नहीं जे करवाई जानी। तू ये सोचे भी मैं काम भी कुकरां वाले करा ते काम भी सूकरां वाले करा, ते गुरु मैनू कवे बिना दुनिया की आवाज़ बंद करवा सकदा, गुरु की आवाज़ नहीं तेरे कोलों बंद करवाई जानी। इहदे नालों चंगा अपने हिरदे च रब्बी भगती नूं लिया, परमेश्वर की याद नूं लिया, ताकि गुरु दे कोलों तैनूं ये वचन ना सुनने पैण, तैनू कदे अपने आप से लानत ना पवे भाई मेरा जीवन कितना गिरिया होया। साहिब आखते ने, एक भगत भगवान जे प्राणी कै नाहे मन, जैसे सूकर सुआन नानक मानो ताहे तन। दूजी तस्वीर हजूर ने बख्शिश की है, जो प्राणी निस दिन भजै रूप राम ते जान, हर जन हर अंतर नहीं, नानक साची मान, दिन रात रब्बी इबादत विच गुजार होए। सजना आ धरती धर्मशाला है, तेनू गुरु ने इको ही गल ते चेते करवाई, पुत्रा जिस मोड़ ते भुल जावे मेरे कोल आ जी, मैं तेनू मुड़ वाहिगुरू नाल जोड़ देंगा। मैं ते आई इस काम नूं है, पर बंदे दा एक सुभाअ है, बंदे दा एक सुभाअ है, ये रब्बी इबादत में जुड़न की बजाय, मालिक के चरणों में जुड़न की बजाय अपने जीवन विचों जड़ियां बाकी मंगां ने उहदे नाल बहुता अपनी जिंदगी का स्नेह पा लैंदा है।
अपनी जिंदगी का स्नेह पा लेंदा। एक हजूर का बचन ख्याल में रखियो जे। मालिक ने बड़ा प्यारा अमृत बोल बख्शिश किया। भगत कबीर साहब की बाणी का है। उन्हें स्पष्ट आख्या, कह लगे भूखे भगत ना कीजै, जय माला अपनी लीजै। जे तू मेरे को भुखे को इबादत करवानी है ना तो मेरे को नहीं होनी, आ अपनी माला चुक। रब नाल एक बड़ा प्यार वाला एक गल चेता रखो, जिथे प्रीत गहरी होवे ना, साडे बच्चे ने जिथे प्रीत गहरी होवे उत्थे बच्चा कई बारी अपनी मंग मनाउण दी कोशिश करता, ना मन्ने तो रुस जांदा। दुबारे मापे की करते हैं, उहदी मंग भी पूरी करते हैं, उहनूं रुस्से नूं भी मनाउंदे ने, उहदा मूँह भी चुमदे ने। ये तो प्रीत की बात है ना। हजूर कहते तू रब नाल प्रीत इन्नी पा के देख, सिमरन कर दिया, बंदगी कर दिया, तू प्यार ही इन्ना पा के देख, एक दिन वक्त आवे रब तैनूं मनावे। गुरबाणी में इस गल का भी जिक्र आया होया, मैं संकोच में गल करनी चाहना। गुरबाणी में इस गल का भी जिक्र आया होया, कबीर मन निर्मल भया, जैसा गंगा नीर पाछै लागो हर फिरै, कहत कबीर कबीर। लोक रब नूं कबीर दा अर्थ हुंदा वड्डा, कबीर लफ्ज़ फारसी दा। लोक रब नूं कबीर कहंदे ने, पर मैनू रब कबीर कहंदा भी कबीर तू बहुत प्यारा पुत्तर है मेरा, मैं तेरे नाल ही स्नेह पाउणा चाहुंदा है। रब मेरे पिछे लग्या फिरदा। देखो अमृत बाणी दा वचन कहण लगा सां, भूखे भगत ना कीजै, जय माला अपनी लीजै। हाँ मांगो संतन रेना, मैं ना ही किसी का देना। मैं तेरे दर नूं छड्ड के किवें जावां, तू सब तो वड्डा, मैं किसी का कुछ देना थोड़ा, मैं किसी का कर्जदार क्यों बना। माधो कैसी बने तुम संगे, तेना मेरी किहो जी दोस्ती बन गई है। आप ना देवो तले हो मंगे, जे तू आप नहीं देंदा मैं तेरे को मंग के ले लांगा, कोई इतराज नहीं जिथे प्रीत गहरी होवे। हुण मंगिया की है, दोए सिर मांगू चूना, पाओ घ्यो संग लूना। हे मेरे मालिक, चूना का अर्थ हुंदा आटा। मेरे मालिक मेरे ते कृपा कर, मैनू 2 सेर आटा रोज का दे। एक पल मैं रुकन लगा, शब्द आप उस वाले ध्यान रखना। ज़्यादा मंगना मंगन नीका, हर जस गुरते मंगना, पर कई गल्लां विचों निकल आउंदियां ने। गुरदेव नूं पूछिए भी सच्चे पातशाह तुसीं देखो रब दी तुहाडे नाल सीधी गलबात है, ते तुसीं 2 सिर मांगू चूना, 2 सेर चूना मंगिया, आटा मंगिया, इक्को बारी क्यों ना मंग लिया भी सारी जिंदगी ना मिल जाए। वो कहते सजना तेनू शक होएगी भी मेरा मालिक कमज़ोर है, तेनू शक हो सकती है, मैनू नहीं है। ना तो मैनू रब ते शक है भी उन्हें मरना है, ना मैनू इस गल ते शक है भी उहदियां दातां मुकणियां ने, ना मैनू इस गल ते शक है भी उन्हें कल सुभाअ तब्दील कर लेना। वो तो औगण देख के भी दई जांदा है। मैं इन्ना मंग के पहरेदारी क्यों करा, जदों जदों लोड़ पई मैं मंगदा रहांगा। मैं उन्होंने बेनती कर दी, मैं स्टोर च नहीं रखना चाहता, मैं तो तेरे घर ही रखना चाहना। दातिया तू कृपा कर, 2 सिर मांगू चूना, पाओ घ्यो संग लूना। लूना का अर्थ होंदा लूना, पुराने समय च लूना कहा करते सन बजुर्ग भी अज घर च की सलूना बनाया, भाव की दाल सब्जी बनाई है, मैनू कोई दाल सब्जी भी दे। पाओ घ्यो संग लूना, आसिर मांगो दाले, मोको दोनों वक्त जिवाले। मैं अद्धा सिर दाल सब्जी मंगना तो मैनू ये चीज़ां 2 वक्त चाहिए ने। 2 वक्त मेरे घर का राशन, 2 वक्त मेरे घर की जी लोड़ आ वो इन्नी कू है। हुण देखो किड्डियां प्यारियां दातां मंगियां, नाल बचन कर दिता, पाओ घ्यो संग लूना। खाट मांगो, खाट का अर्थ हुंदा मंजी बिस्तरा। खाट मांगो चौपाई, आम करके गरीबां दे घर कईयां दे विचारियां दे ऐसा हुंदा है। आपां बहुत लोगों ने ऐसा दर्द हंडाया, घर च मंजा है पर एक पावा टुटिया, घर च मंजा है एक बाही टुटी है। कहंदे मैं तेरे कोलों एक मंजी मंगदा ते मंजी दे 4 पावे साबित होने चाहिए ने। खाट मांगो चौपाई, सिरहाना एक सिरहाना, अवर तलाई एक ओदा चंगा बिस्तरा होवे। उपर को मांगो खींदा, उपर नहीं मैं रजाई भी मंगदा, खींदा दा अर्थ रजाई। तेरी भगत करे जन थींदा, ये मैं चीज़ां तां मंगियां ने भी मैं तेरे प्यार विच भिज के तैनूं गा सकां, मैं तेरी इबादत तेरे प्यार विच भिज के कर सकां। उपर को मांगू खींदा, तेरी भगत करे जन थींदा। मैं ना ही कीता लभो,
रब किते ये ना कही भी कबीर रब की गल मंगदा मंगदा तू आ दुनियावी दाता मंगण लग पे। मैं स्पष्ट कर दिया रब्बा, मैं ना ही कीता लभो एक नाउ तेरा मैं फबो। जिहड़ा मैनू चंगा लगदा, चंगा तेरा नाम ही लगदा है, चंगी तेरी बंदगी हो लगती है। ਇਹ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਿਲਾਪ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਐਵੇਂ ਧਿਆਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਟੇ 'ਚ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਐਵੇਂ ਧਿਆਨ ਦਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਐਵੇਂ ਧਿਆਨ ਮੰਜੇ ਬਿਸਤਰਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ। ਮੈਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਾਂ। ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਲੱਭੋ ਇੱਕ ਨਾਉ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਫਬੋ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਅਬ ਜਾਣਿਆ ਜਬ ਜਾਣਿਆ ਤੋ ਮਨ ਮਾਨਿਆ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੁਣ ਮੰਨ साईं दे चरणों में मैनू मालिक ने कृपा करके ये दातां बख्शिश कर दित्तियां। मंग दुनियावी मंगा भी रज के मंग, पर मंगदियां चेता रखी भी किते ये ना होवे मैं बहुत कुछ मंग लिया सजना, जो मंगना सी उहदे वल्लों झोली ना खाली रह जाए, किते उस गल्लों कमजोरी ना आ जाए, किते ओ पक्ष जीवन का कमजोर ना हो जाए। कह मालिक दे चरनां विच आके दोए कर जोड़ मांगो एक दाना। साहिबा किसी दे हिरदे विच जे मकान वसदा होया ते तू उहनूं भूतां प्रेतां दे बराबर आखना है। एक बारी मैं शब्द तुहाडे सन्मुख रखने आ, उहनूं बड़ी ध्यान दे के समझो जी। अंत काल जो लक्ष्मी सिमरै, ऐसी चिंता मैं जे मरै, सर्प जोन बल बल उतरे। साइयां मैं नहीं चाहता मेरे हिरदे विच केवल अपने धन दौलत की गल रहे, मैं चाहना मेरे हिरदे च तू वसदा होवे, मेरे हिरदे च तू वसदा होवे, तेरी याद वसदी होवे, तेरा प्यार वसदा होवे। हरी भाई गोबिंद नाम मत विसरै, हे भलिओ देखियो किते रब दे नाम नूं ना भुलाइओ। सारी शब्द की विचार सानू इसे गल ते सुचेत करती है। जे मंगण आए तो साईं दे कोलों ओ दात भी मंगी, जिहदे लई गुरुदेव सच्चे पातशाह तैनूं वार वार आखदे ने, कह गुरु कोल आके बेनती कर, सतगुरु जीओ कृपा करो, विसर नाही दातार अपना नाम देहो, गुण गावां दिन रात नानक चाहो एहो। मेरे मन विच ना हुण कपड़े पहनण दा चाह रहा है, मेरे मन विच ना कुछ खाण पीण दा चाह रहा है, मेरे मन विच ना किसी होर दुनियावी दुनिया दे सुख भोगण दा चाह रहा है। मेरे मन विच इक्को एक चाह साइयां मैं रज के तेरी इबादत कर सकां, मेरी झोली विच अपने नाम दी दात पा। मैं दुनिया दियां बहुत दातां मंगदा रहा, मैनू पता ही नहीं लग्या मंगना की चाहिए। अज मैं तेरे चरणों में मंगण आया। झूठा मंगण जे कोई मंगे तिसको मरते घड़ी ना लग गए। जे कोई दुनियावी दाता ही मंगदा रहा ते तेरे नाम नू ना मंगिया ते ओ ते अपना जीवन तबाह करके चला जाएगा। मेरे ते कृपा कर, मेरे ते बख्शिश कर। एक शब्द होर कहना चाहना है। रब ने एक बचन आख्या, कहने रब्बा तेरी मेरी दोस्ती है ना, ते दोस्ती तो वह होंदी है भी जी कुछ काम मैं कर लिया, दोस्त होंगे ही उन्हें भी लोड़ पैण ते तू मेरे काम आ सके मैं तेरे काम आ सका। दोस्ती कहनी उन्होंने ये कादी दोस्ती हुई भाई जे किते मैं भुल जाना, मैं किते भुल जाना ते तू समर्थ दोस्त है, तू भुलदा कोई नहीं। मेरा तो सुभाव है भुलण, अंदर सबको भुल गुरु करतार, मेरा तो सुभाव है भुलना, मैं भुल जाना। तेरे नाल मेरी दोस्ती ते तेरे विच गुण है, तू नहीं भुलदा। फिर मैं अज तैनूं एक बेनती करा, जे तू मित्र असाडड़ा हिक भोरी ना विछोड़, जे तू साडा मित्र है तो मैं भुल जाना, तू ते ना भुला मैनू। तू एक भोरी भी ना विछोड़, मित्रताई ते तां पक्की होनी है। एक इहो जी मित्रताई जे मैं भुल जाना तो तू भी भुल जाना। एक कृपा कर मेरे मेरा दिया साइयां, जे किते मैं भुल जाना पर तू मैनू ना भुली, तू मैनू चेता करवा दी, तू मैनू याद करवाई भलिया। अबर काज तेरे किते ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। क्योंकि असल विच जिंदगी दे काम जिहड़ा आउणा केवल नाम नहीं आउणा है। इस गल नूं ख्याल करके सुनियो। ऐसो सहाई हर को नाम,
जिथे ओहो जे शब्द आउण ना उत्थे कोई ना कोई गुंझल होया करदी है। ऐसो रब दा नाम तेरा इवें सहाई होना है, रब दा नाम तेरा इवें सहाई होना है। ऐसो सहाई हर को नाम साध संगत भज पूरन काम। कहते रब की इबादत कर, गुरु संगतां में जुड़ के, मालिक के चरणों में जुड़ के रब की इबादत कर। इहो जिहा रब का नाम तेरे सहाई होना है। हुण गुरबाख पढ़ियो जी, बूढ़त को जैसे बेड़ी मिलत। जे कोई बंदा डुबन लगा होवे ना, वो हाथ पैर मारदा होवे, तरले करदा होवे, बाहां खड़ियां करदा होवे, ओ मैनू कोई बचा लो। कहले उस वेले बचाउण दी गल छड्डीए, बेड़ी आ जाए, कोई बेड़ी लैके आ जाए सजना बैठे दे विच। हजूर कहंदे जिवें डुबदे बंदे नूं तिणके दा सहारा लोग कहंदे ने, पर मैं तैनूं डुबदे बंदे नूं कोई बेड़ी लैके आ जाए। ऐसो सहाई, ये पंक्ति नूं चेते रखियो, सारे अगले अर्थ तां स्पष्ट होने ने। रब दा नाम तेरा इवें सहाई होना है। बूढ़त को जैसे बेड़ी मिलत, बूझत दीपक मिलत तिलत। दीवा बुझण लगा होवे, टिमटमाउंदा होवे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਟਿਮਟਮਾਉਂਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਫੂਕ ਮਾਰ ਕੇ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇਲ ਪਾ ਦੇ ਤੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਵੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਦੀਵੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਲਤ ਅਗਨੀ ਮਿਲਤ ਨੀਰ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਪਾ ਦੇਵੇ ਵੀ ਸੜਨਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਡੋਬ ਦੇ ਵੀ ਲੈ ਸੜਨਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਬਚਾ ਸਕਣਾ। ਜਲਤ ਅਗਨੀ ਮਿਲਤ ਨੀਰ, ਜੈਸੇ ਬਾਰਕ ਮੁੱਖੇ ਖੀਰ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਨਿਕੜਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਵਾ ਸਕਦੇ, ਕੇਵਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੁੱਧ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੁਰਾਕ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਾ ਵਿਲਕਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਸਜਣਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਇਵੇਂ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ ਤੇਰਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸੀਤਲ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬੇੜੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣਾ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੇਰਾ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਪਣਾ? ਰੱਜ ਕੇ ਜਪ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਜੈਸੇ ਰਣ ਮੈਂ ਸਖਾ ਭਰਾਤ। ਹੁਣ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਲੜਨ ਆਈਆਂ ਹੁਣ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪੱਖੋਂ ਲੜਨ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾਂਗਾ, ਹੈ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਵਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਪਲ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਉਹ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਰਣ ਮੈਂ ਸਖਾ ਭਰਾਤ, ਜਿਵੇਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਕਾ ਭਰਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਚੇਤਾ ਰੱਖੀਓ ਸੱਜਣਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਪਾਪੀ ਵੀ ਹੋਵੇਂ, ਤੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਵੇਂ ਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਾ ਭਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਵੇਂ ਤੇਰੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੈਸੇ ਰਣ ਮੈਂ ਸਕਾ ਭਰਾਤ, ਜੈਸੇ ਭੁੱਖੇ ਭੋਜਨ ਮਾਤ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਓ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਖਾਣਾ ਪੈ ਜਾਏ ਨਾ ਕੁਰਲਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਜੇ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੋਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰੋਟੀ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਪੱਕੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਭੁੱਖੇ ਭੋਜਨ ਮਾਤ, ਜਿਵੇਂ ਭੁੱਖੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਬਣਿਆ ਖਾਣਾ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਬੀਲਦਾਰੀ 'ਚ ਕਲਪ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਲਪ ਵੀ ਜਾਂਦੇ। ਬਹੁਤਾਤ ਵਾਰੀ ਇਸਤਰੀ ਕਲਪੀ ਹੋਈ ਵੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਮਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੈਸੇ ਬਾਲਕ ਭਾਏ ਸਿਪਾਹੀ, ਲੱਖ ਅਪਰਾਧ ਕਮਾਵੇ, ਕਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਝਿੜਕੈ ਬਹੁ ਭਾਂਤੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਤਾ ਗੱਲ ਲਾਵੇ। ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਅਤ ਕੋਪ ਕਰੇ ਕਰ ਧਾਇਆ,
ਤਾਂ ਵੀ ਚੀਤ ਨਾ ਰੱਖ ਸਮਾਇਆ। ਜੇ ਹੱਦ ਦਰਜੇ ਦਾ ਮਾਂ ਨਾਲ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪਕਾ ਕੇ ਦੇਵੇਗੀ। ਮਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਟੁੱਟਦਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਜਿਵੇਂ ਜੈਸੇ ਭੁੱਖੇ ਭੋਜਨ ਮਾਤ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਭੁੱਖੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਬਣਿਆ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਨਾ, ਇਵੇਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ ਹੈ। जैसे रण में सखा भरात, जैसे भूखे भोजन मात, जैसे किरखे बरसत बेग। किरखा का अर्थ होंदा खेती, खेती सुक रही होवे ते वरखा पै जाए। उस किसान नूं पुछ के देख, तेरे जीवन के गुण सड़ रहे होवन, गुरु कृपा करके उन्हां ते वाहिगुरू दे नाम की ठंड वरता देवे, वरखा पा देवे। ओ सज्जणा फिर गुरु का धन्नवाद करी। जैसे किरखे बरसत मेघ। साहब कहते इत्थे ही बस नहीं, अपनी गल नूं जीवन नूं एक एक गल समझ के तुरी। जैसे पालन शरण सेंग, सेंग का अर्थ हुंदा है शेर। कहते जिमें तू बाकी तेनू गिद्दड़ बिल्लियां डराउंदियां होण ते तू आके शेर की शरण विच पै जाए ते तू कमे भी मैनू हुण किसी का डर नहीं, क्योंकि मेरे मालिक ने कृपा कर दी। मैं उहदी शरण विच पिया होया, तां कि शरण परियो नानक दास, जानते उपर को नहीं। नाम की शरण विच रहण वाले नूं तां औखी घड़ी लगदी कोई नहीं। ये तेरी जिंदगी च काम नाम ने आउणा है, ये तेरी जिंदगी च कहे हुए वाहिगुरू ने आउणा है। ये तेरे कोठे मंडप माड़ियां परिवार जो कुछ भी धन दौलत मान वडियाई वेखना, और विचों काम तेरे केवल सिमरन ने आउणा है। मत सोची सिमरन का पल्ला छड्ड के जिंदगी च कामयाबी मिल जाएगी। यकीनन अपने मालिक के चरणों में जुड़ के रवी। साहब आखते ने, कहते गरड़ मुख नाही जम तरास, उस शब्द का अंग है। गरड़ मुख नाही जम तरास, सूआ पिंजर नहीं खाए बिलास। जिहदे कोल सप नूं पकड़न दी कला है ते उहनूं थोड़ा डर है भी सप डंग मार देगा, उहनूं की डर, उह तां पकड़ी फिरदा रोज़। नैट ते तुसीं देखदे हो सप्पां विच उहनां दे बच्चे खेडदे ने जिन्हां नूं इस गल दा पता है। हजूर कहंदे इत्थे ही बस नहीं सजना, गरड़ मुख नाही जम तरास, सूआ पिंजर नहीं खाए बिलास। बिलास कहंदे ने बिल्ले नूं। जे पिंजरा जे एक सूआ का अर्थ होंदा तोता, जे एक तोता किसी पिंजरे च बैठा है तो लख बिल्ले कोल सियाणपा होण, लख बिल्ले कोल ताकत होवे, पर कढ़ के उन्होंने तोते नूं खा ते नहीं ना सकदा, क्योंकि उहदे दुआले पिंजरा है। साहब कहंदे रब दे नाम दी तेरे दुआले ऐसी कार है, तू ये समझ ले तू गुरु दे पिंजरे विच है। सजना मौत रूपी विकारां रूपी जिन्ने मर्जी बिल्ले जोर ला लैण तैनूं नहीं कढ़ सकदे उहदे विचों। सूआ पिंजर नहीं खाए बिलास, जैसो दानो चक्की माहे, जैसो आंडो किरदे माहे। जिहड़ियां कूंजां ने वो आंडे दे के किधरे दियां किधरे आ जांदियां ने। उन्हां दे पिछों बच्चियां दा जन्म होना, बच्चियां ने परवरिश करनी अपनी। ये कौन करदा मना, तैनूं क्यों नहीं तबार आउंदा? तू उहदा साईं दा नाम जप, वो मालिक दे चरणां विच जुड़। जैसो आंडो गिरदे माहे, वो कूंजां सिर्फ अपने ख्याल रखदियां ने, अपने मन में चेता रखदियां ने। जैसो आंडो गिरदे माहे, जैसो दानो चक्की दराहे। जिवें चक्की चलदी है ना, जेड़े दाने उस चक्की दे धुरे नाल जुड़े रह जांदे ने, पत्थर भावें किड्डे ही करड़े होवन, दाने भावें किड्डे ही पोले होवन, पर उन्हां दाणियां दा कुछ नहीं बिगड़दा। सज्जना जेड़े अपने धुरे नाल जुड़े रहिंदे। जैसो आंडो गिरदे माहे, जैसो दानो चक्की दराहे। बहुत उपमा थोर कही। कहंदे ये गल्लां तां मैं थोड़ियां जिहियां दस्सियां ने, इन्नियां गल्लां दस के भी मेरे हजूर कहंदे ने बहुत उपमा थोर कही। हर अगम अगम अगाध तू ही रब्बा, तेरियां गल्लां ते मैं सारियां दस भी नहीं सकदा। ये ते बहुत थोड़ियां जिहियां गल्लां दस्सियां ने। सिमरन दियां इन्नियां बरकतां ने, किसी मनुख कोल दस्सण जोगी जुबान नहीं है। कुछ एक गल्लां इस तो अगली गल की विचारन की कोशिश करिए। मेरे मालिक ने कृपा की, कहन लगे पुत्रा मैं धर्म के 2 अंग तेरी झोली विच पाए सन। मैं धर्म के 2 अंग तेरी झोली विच पाए सन। केड़े? मुकम्मल धर्म की है?
सर्ब धर्म है श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप। दूजा अंग की है निर्मल कर्म। तेरा सिमरन किया होया तेरे कम्मां तो पता लगे, तेरी जुबान तो नहीं, तेरे कम्मां तो पता लगे। तेरा सिमरन किया होया तेरी जिंदगी के विहार तो पता लगे, तेरा सिमरन किया होया तेरे किरदार तो पता लगे, तेरा सिमरन किया होया तेरी बोली तो पता लगे। लोग कहण भी भलिया तू तो बड़ी मिठी बोली बोलदा है, फिर तू कमें भी मैं उन्होंने चेता करदा जिन्होंने आप रोज कहने मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा। हम संभल थकी जी वो कदे ना बोले कौड़ा। जे तेरे कर्मां विच सिमरन ना आया, जे तेरे कर्मां विच सिमरन ना आया, मैं थोड़ी जी उदाहरण दे दियां। एक डॉक्टर है, वो चंगी तरह पढ़िया, जे वो चंगी तरह पढ़िया जदों फील्ड विच गया वो कामयाब डॉक्टर बन गया, क्योंकि उन्हें पहला समा बड़े ध्यान नाल लाया सी। जेड़े डॉक्टर ने पढ़ाई वेले कुताही कर ली, उस वेले ध्यान नाल नहीं पढ़िया, हुण उन्हें किसी का ऑपरेशन करना, हुण उन्हें याद कोई नहीं, वो किवें सफल होएगा। साहब कहंदे भी सजना ਜਿਹੜੀ बार सफलता तेनू काम जितन विच होनी है ना, क्रोध जितन विच होनी है, लोभ जितन विच होनी है, लोगों का दिल जितन विच जिहड़ी तेनू सफलता मिलनी ना, वो तेनू सिमरन दी बुक्कड़ विचों मिलनी है। ये गल चेता रखी। पर तेरा अंदर बैठ के जपिया होया, तेरा अंतरात्म में टकाया होया रब तेरियां गल्लां तो, तेरे किरदार तो, तेरे विहार तो प्रगट होवे। हुण जदों विहार दी गल आउंदी है, इत्थे असीं विछड़ जाने हैं। इत्थे साडी जिंदगी दे दो अंग एक नज़र नहीं आउंदे। एक छोटी जी उदाहरण दिया। प्रिंसीपल गंगा सिंह ने कुछ आला किस्म दीयां किताबां लिखियां ने, बहुत वड्डा प्रचारक भी होया सिख कौम दा। सिख मिशनरी कॉलेज का पहला प्रिंसीपल है प्रिंसीपल गंगा सिंह। और इतनी भी अर्ज करते हैं, मेरा मतलब नहीं सी इस पासे कोई गल करन दा, पर अचानक गल चल गई है। जेड़े मिशनरी कॉलेज ने ना, याद रखो जे बहुतात लोग ऐसा भरम पा देंगे ने भी ये किसी वखरे तौर पर किसी तोड़न आते हैं, बिल्कुल तोड़न नहीं आते। इतनी अर्ज करा, ये गल पल्ले बन के तुरियो जे जदों कोई गुरु चरणों विचों सच्ची गल गुरबाणी दी आखदा है ते किसी सुत्ते पे नूं जगाउंदा है, कई बारी कारण ऐसा बन जाता भी सुत्ता ही एडी घूक नींद होया तो करबट बदल के फिर सौ जाता है, फिर उन्होंने जगाउण की कोशिश करी दी, फिर वो करबट बदल के सौ जाता है। जदों पढ़वाया बाद में उठिया तो हपड़ा लबड़ी पै गई, हुण उहदे कोल वक्त कोई नहीं, सौ के वक्त लंघा लिया, हुण भज्जिया फिरदा मैं की करा। फिर उसकी झोली च पछतावा पैना है, फिर उसकी झोली च पछतावा पैना है, क्योंकि जेड़े वक्त नाल नहीं जागदे वो मुड़ के पछताउंदे ने, जेड़े वक्त नाल जाग जांदे ने वो गुरु नाल जुड़ जांदे ने। साडा मतलब ते गुरु नाल जोड़ना। एक भी गल इतिहास तो बाहरी, एक भी गल गुरबाणी तो बाहरी, एक भी गल भाई गुरदास जी दे बचना तो बाहरी नहीं जे कोई कहंदा। मैं जिहड़ी गल करन लगा सां प्रिंसीपल गंगा सिंह दी, पहला मैं चले गए वापस परता वां। प्रिंसीपल गंगा सिंह ने एक बड़ी प्यारी विचार लिखी है। हूँ शोर दुनी दा सुन के एक जोगी पर्वत चढ़िया। हूँ शोर दुनी दा सुन के, दुनिया दा हा हा हुआ शोर सुन के उन्हें क्या इत्थे कित्थे रहना, मैं ते बंदगी करने वाला बंदा है। हूँ शोर दुनी दा सुन के एक जोगी पर्वत चढ़िया। बन पर्वत लंघ ऊंचे नीवे जा कंदरी ओ बड़िया। कंदर कहंदे ने पहाड़ों में खोदी हुई थां, छोट छोटियां गुफावां, उत्थे जाके बैठ गया। बगल निमाणी एक ओदे कोल ही अचानक, फिर गल नूं ख्याल विच रखियो, एक जोगी दुनिया दा रौला सुन के जंगलों में जा चढ़िया, पहाड़ों में जाके चढ़ गया। ओदे कोल ही एक बगल निमाणी अबला चीकी। एक बेचारा कोई अबला, वैसे तो इस्त्री नूं कहंदे ने पर गुरमत में इस्त्री बराबर का दर्जा रखती है। आप तो सिर्फ इन्नी गल करनी भी कोई लोड़वंद उहदे कोल चीकिया,
पुकारे उन्हें मेरी मदद कर। बगल निमाणी अबला चीकी पर उस गल ना गौड़ी। उन्हें परवाह नहीं की, मैं बंदगी करने वाला बंदा, मैनू तेरे नाल की वास्ता, मैनू तेरे नाल की वास्ता। बगल निमाणी अबला चीकी पर उस गल ना गौड़ी। कठिन तपस्या तप कर भारी जदों उचेरा चढ़िया, जदों वो अध्यात्मक तौर पर उच्चा हो गया, उन्हें बाकियां दी तां लोड़ पूरी ना की, अपनी बंदगी च लगे रहा। मुबारक। दाते दा दर बंद सी बूहा, लिखिया सी तू मुड़ जा। दाते दा दर बंद सी बूहा, लिखिया सी तू मुड़ जा। काफर हटी कमीने पाजी ना बूहा खड़का तू। दाते दा दर बंद सी बूहा, लिखिया सी मुड़ जा तू। काफर हटी कमीने पाजी ना बूहा खड़का तू। दर्द बंद नूं मिलना चाहे, मालिक दे घर नूं ते मिलना चाहुंदा है। दर्द ना वंडाया दुखियां, पर तू कदे दुखियां दा दर्द भी नहीं वंडाया ते दर्द बंद नूं मिलना चाहुंदा है। गरीब नूं कदे वेखिया तक नहीं, गरीब नवाज नूं मिलना चाहुंदा है। दुखियां दा ना दर्द बंद नूं मिलना चाहे, दुखियां दा ना दर्द वंडाया। जा पहला दुखियां दे वेड़े फिर मेरे वाले आवी। पहला जा तू किसे दुखियां दे काम आवी हो सजना, फिर तू मेरे घर वाल आवी, फिर मैं तेनों अपने दर ते प्रवान कर लांगा। तो बेनती करा, जे जिंदगी च सिमरन कर दिओ, रब दी इबादत कर दिओ सजना, तेरे अंदरों गुरु नानक प्रगट होवे। लोग कहण जिवें ओ जगत जलंदे नूं वेख के नहीं सी बर्दाश्त कर सके। आ गुरु नानक दा सिख है, ए नहीं किसे धी भैन दी इज्जत लुटदा, ए नहीं कदे माड़ा विहार करदा, ए नहीं कदे मंदे बचन बोलदा, ए नहीं कदे नोहां दा दाज लैंदा, ए नहीं कदे किसे नाल बेईमाना करदा, ए नहीं कदे किसे दीयां धीआं नूं साड़दा, ए नहीं धी ते पुੱਤ विच फर्क समझदा। इहदे कोल धी होवे तद भी उड्डा ही मान करदा, पुੱਤ होवे तद भी मालिक दा शुकराना करदा। दोने गल्लां विच अंतर नहीं समझदा। ए माया दी पकड़ विच नहीं है, इहनूं राज तख्त ते बिठा लिओ, गुरु दा सेवक है। जे इहनूं नवाब कपूर सिंह वांगू लिद चक्कण ला लिओ, तद भी गुरु दा सेवक है। सज्जना तेरे कर्मां चों सिमरन प्रगट होवे। बदकिस्मती है, असी जीवन दे उस तत्त नूं नहीं समझ सके। सिमरन करना बहुत जरूरी है, हर हालत जरूरी है। गुरदेव दे बचन तुहाडे सन्मुख फिर रखने आ। इच्छा पूरक सर्व सुख दाता, हर जांकै वासा है काम तेना। सो ऐसा हर ध्याईऐ मेरे जीअड़े, तां सर्व सुख पावे मेरे मना। जप मन सतनाम सदा सतनाम, हलत पलत मुख उजर होई है। नित ध्याईऐ हर पुरख निरंजना, जय हर सिमरन भया। जिथे रब दी याद पैदा होगी, तैं उपाधगत कीनी, कलेश उत्थों मुकने ने। जिस दिन रब दे गुण साडे हिरदे च पैदा हो गए ना, रब दी इबादत हिरदे च पैदा होगी, फिर उस दिन घरां चों कलेश उस दिन मुकने ने। उस दिन परिवार साडा परिवार नहीं, गुरु नानक साहब दा परिवार नजर आएगा। उस दिन परिवार साडा परिवार नहीं, मालिक दा परिवार नजर आएगा। ओ गुरु क्या सिखा, जेड़े अज तू गुरु दे बोल पढ़ रहे हैं, मंगना मंगन नीका, हर जस गुर ते मंगना। साडे कोल घरां च बैठिया रब दी बंदगी नहीं मंग हुंदी। गुरु नूं पुछ के देख तू कित्थे बैठ के मंगी सी। हजूर कहंदे उस दिन जिस दिन मैं बंदगी मंगदा सी ना, मैं ते आम करके भी बंदगी मंगी, पर बड़ा सौखा हो सकता। लोग कहणगे तेरे थले मखमली गद्दा सी, तू तां बंदगी मंगदा रहा। तेरे शीस उत्ते चौर झुलदा सी, तू तां बंदगी मंगदा रहा। तेरे चारे पासे जान वारन वाले सिख सन, तू तां बंदगी मंगदा रहा है। ओ भलिया, तू आही तस्वीर देख के परमा ना जाई, दूजी तस्वीर भी वेख लवी। जिस दिन तेनू मेरे कर्मां चों सिमरन पता लगेगा, जिस दिन मेरे थले मखमली गद्दा नहीं, ओ अग वर्गी तवी सी। जिस दिन मेरे शीस उत्ते चौर नहीं सी झुलदा, उबलदी रेत पैंदी सी। जिस दिन मेरे दुआले मेरे जान वारन वाले सिख नहीं, मेरी जान लैण वाले पापी खलोते सन, तू उस दिन देखी मेरे बुल्लां विचों निकले हुए शब्दां नूं, उस दिन विचार के देखी। मैं उस दिन भी कहा सी, तेरा किया मीठा लगे
हर नाम पदार्थ नानक मंगे। मंग, बेनती कर गुरु दे चरनां विच जुड़ के, मंग ना मंगन नीका, हर जस गुर ते मंगना। दातिया किरपा कर मेरी झोली विच नाम दी दात पा, मेरे हिरदे विच तेरी बंदगी चंगी लगे, मैनू तेरा नाम चंगा लगे, मेरे ते बख्शिश कर। कुछ गल्लां होर साझियां करनियां ने। तुसीं अक्सर सुभाਅ अपना देखो, असीं डरे होए तां भावें बंदगी करी जाइए भी नहीं कहा इन्ना चिर करनी है। एक दिली प्यार होंदा है। दस कई बारी उदाहरण दिंदा है, तुसीं बच्चे नूं सिलेबस की किताब पढ़न नूं दिओ, वो 1 घंटे तो बाद थक जाता, मेरे को नहीं पढ़ी जाती, पर उन्होंने कहानियाँ स्टोरीज ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ नावल दे दिओ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ भी बेटे सौ जा वक्त बहुत हो गया, वो कहना नहीं मैं किताब पूरी करके सोवांगा। एक किताब उन्होंने पढ़नी औखी लगती है, एक नूं दिल विचों चाह के पढ़दा है। अणगिणत जिंदगी दियां इहो जिहियां उदाहरणां ने जदों निंदा करनी होवे ते असीं उठदे नूं भी बिठा लेने भी नहीं बह जो घड़ी अज लेट सौ जांगे, कोई गल नहीं, रज के निंदा करने। पर जे किते सुखमनी साहिब दा पाठ करना पै जाना, साडे गोडे थक जाते हैं, असीं बार बार ना दिखाइए, थोड़ा चोरी कर लांगे, भई लोग कहणगे भी कथा करदा ते किवें उतावला होया होया, चोरी चोरी पन्ने लिखांगे भी किन्ने क पन्नियां तक समाप्त हुंदा जे किन्ना क कम रह गया। अष्टपदियां दिमाग च रखांगे भी किन्नी क अष्टपदियां तक रह गया। हाल है साडा मनोचाट है, मनोचाट है। कोई गल लै लईए, गुरु चरनां विच अखंड पाठ साहिब करवाउणा होवे ना, घर वालियां नूं बिपता पई रहिंदी। हालांकि सिर्फ 2 रातां हुंदियां ने जागण, सिर्फ 2 रातां, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी बदल बदल के जाग सकते, कोई वड्डी गल नहीं। ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ नहीं चेता हुंदा अज मैं 35 महापुरखां नूं अपने घर बुलाया होया, ओए उन्हां ने मेरा जीवन सवारना है, उन्हां ने मैनूं दसना तेरी जिंदगी का मकसद की है। 1-2 रातां 2 दिन भी गुरु कोल बैठना औखा है। गुरु ये तो नहीं ना पाबंदी लाने भी 24 घंटे मेरे को बैठा रहे, पर सोच के देखो असीं पाठ करवाइए, गोभी आलू खरीदते रह जाने, सानू गुरु के अमृत बोलों का पता ही नहीं होंदा की कुछ लंघ गया, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ जिंदगी गवा के चले जाने। तो मेरे साहब आखते ने, कहते भलिया असल कारण की है? कारण यह है भी तेरा मन है रोगी, तेरा मन है रोगी। एक छोटी जी उदाहरण दे दियाँ, मैं अपने निजी जीवन की कदे नहीं, बहुत घट कोई रियल, पर मैं जी एक सारियां दी सांझी गल करन लगा। पिंडां च हुंदे सां, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ एक भरा बीमार हो गया तो एक तंदुरुस्त है। हुण जिहड़ा बीमार है उन्होंने डॉक्टर ने कहा भी इन्हूं डबल रोटी लैके लिओ, इन्हूं रोटी नहीं देनी। उन्हें डबल रोटी खानी चाह च भिओ के, जिहड़े तंदुरुस्त उन्हें तरले लैंदे पे ना, घर च गरीबी हुंदी सी भी किते डबल रोटी मैनूं मिल जाए, ये मना करदे अद्धी रोटी मैनूं मिल जाए डबल रोटी। हालांकि मामूली गल सी अज की जिंदगी च, अज दे बच्चों नूं पुछो तो उन्होंने कोई अहमियत नहीं पता होएगा। उन्हें डबल रोटी दे लई भी भटकदे फिरना, पर जिहदी खातर लई है उहदियां मिन्नतां सारा परिवार करदा भी तू अद्धी दी बजाए तू 2 खा, तू 4 खा, असीं तैनूं सारियां लेके देण नूं तैयार है, तू खा। वो खांदा नहीं, जिन्हों डबल रोटी मिल रही है वह खाता नहीं। हालांकि 4 दिनों उन्हें अरोग हो जाना, फिर उन्हें भी लड़ना भी मैनूं डबल रोटी लिओ, तो उदों घर दे कहणगे चलो उदों तेरियां मिन्नतां करदे उदों तो लैंदा नहीं सी। आम जिंदगी की उदाहरण है। तुसीं कदे मरीज के सराणे देखिओ, फ्रूट पे ने, किन्ना कुछ जूस पे, किन्ना कुछ पिया, तो वह खा के राजी नहीं। पर जिहड़ा बंदा तंदुरुस्त है, गरीब है, रोज़ दिहाड़ी करने वाला बंदा है, वह तरसदा भी किते मैनूं मिल जाए। कारण की है? कारण यह भी जे तन रोगी होवे ना तो भोजन चंगा नहीं लगता। यकीन करके जानियो, जे मन रोगी होवे उन्होंने फिर भजन चंगा नहीं लगता। जे तन रोगी है तो भोजन चंगा नहीं लगता, जे मन रोगी है तो उन्होंने भजन चंगा नहीं लगता। मैं दूजा पक्ष स्पष्ट कर दियाँ, जिमें गरीब नूं लोड़ है तो डबल रोटी ने मगर किमें भजिया फिरदा, उन्हें लोड़ है ना, वो भजिया फिरदा। जे जिस दिन सानू लोड़ पैगी ना, मैं तुहाडी गल ना करा, कई बारी कोई बुरा मना जाता है, मेरे पुत का एक्सीडेंट हो जाए तो मैनू डॉक्टर कहे भी सजना साढ़े दांत खड़े हैं, तू रब अगे अरदास कर ले, मैं उस दिन जाके जी अरदास करांगा ना, उस दिन मैं अरदास नहीं करनी जिहदे च असीं रोज़ खड़े होंगे। हुण तो पता भी नहीं, भाई साहब बड़े प्यारे अंदाज में
हालांकि अरदास करते हैं भाई साहब बोली जानो वाहिगुरू सानू पता भी नहीं हुंदा सी कित्थे भटकदे फिरदे हैं। जिस मेरे पुत का एक्सीडेंट होया मौत के मूँह विच होया उस दिन पुछ के देखी मैनू कोई बुलावे भी भलिया मेरी गल सुन मैं कहांगा छड्ड दे 2 दिन बाद करी मैनू अरदास कर लैण दे। तैनू तेरी जिंदगी की बेड़ी डुबदी नज़र नहीं आउंदी, तैनू तेरी जिंदगी की बेड़ी डुबदी नज़र नहीं आउंदी। हजूर ने एक बचन आख्या रब्बी बाणी विच बड़ा प्यारा, कहन लगे खड़ा पुकारे पत्नी बेड़ा कप्पर बात, गुरु किनारे ते खड़ा तेनू आवाजा मार दो, तेरी जिंदगी का बेड़ा लहरां दे मुंह विच आ गया, इन्हें डुब जाना, उपराला कर ले। असी गुरु नूं भी कहता तू ना रौला पाया कर, तू ना मैनू आख्या कर आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो गावो सच्ची बाणी, मेरे को नहीं आया जांदा। जिहदा मन रोगी है उन्होंने भजन चंगा नहीं लगना। फिर एक उदाहरण दे दिया, जिन्होंने बुखार होया हो वो कहने बार बार भी मेरा मूँह कौड़ा है, करते कहने कोई मिठी चीज़ लिया के देने आइसक्रीम कोई ABC ला लो उन्होंने देने, उन्होंने भी छड्ड देंदा कहना माफ़ करना मैनू ये भी कौड़ी लगती है। हुण कोई डॉक्टर नूं पुछे डॉक्टर जवाब देवेगा भी चीज़ां कौड़ियां नहीं, इनू बुखार करके कौड़ियां लगदियां ने। हुण ख्याल करियो, हुण ख्याल करियो किन्ना उपदेश दिता जाता है, किन्ने गुरुद्वारे ने, किन्ने धार्मिक स्थान ने, सारियां दी गल कर लीए, सारे धार्मिक स्थानों तो इको एक तरह का उपदेश मिलता, थोड़ा बहुत फर्क होएगा वक्री गल है, पर उपदेश तो मिलता ना भी जीवन नूं तबाह करने वालियां चीज़ां ना वरत। किते तो नहीं लिखिया होंदा भी अज इत्थे रज के शराब पी के आवी, तुसी आम कद्दा ते आम थावां ते आम ऐड जिहड़ी लगी हुंदी है वो शराब पीण दी ते ऐड नहीं ना हुंदी। ये तो किते भी नहीं प्रेरित किया हुंदा भी इन्नी शराब पीवी इन्नी पीवी। पर हैरानी की गल है सैकड़े उदाहरणों ने भी शराब छड्ड दे बंदा फिर भी पींदा है, सैकड़े उदाहरणों ने तू अमृत छक ले बंदा फिर भी छकदा नहीं, कहना मन बनाउणा है। किसी शराबी नूं तुसीं देखिया उन्होंने कई भी शराब पी लो कहना नहीं 8 दिनों तक पीवांगा, सोचना जे मन बनाउणा है। वो तो मन बदल बन गया तो बन गया मन, घर च कोई आ गया तो बन गया मन, सगों अपना दूजे दा भी बना लैंदा है। वो भलिया तैनूं मैं पुछदा भी इन्ने हज़ारां तेरे सामने उदाहरणा दित्तियां जांदियां ने, तेरा अमृत छकण नूं मन क्यों नहीं करदा? क्योंकि वह कारण है भी तेनू तो रब चंगा ही नहीं लगता। असल में तो तू तो मजबूरी च मनदा है, तेनू डर पिया होया भी जे मैं रब की गल ना मनी मेरा कितने बिजनेस डाउन ना हो जाए, मेरे बच्चों कोई मुश्किल ना आ जाए, मेरी जिंदगी कोई मुश्किल, डरे हुए रब नूं मनदे। असी रब नूं प्यार नहीं करते, असी रब नूं प्यार नहीं करते। हजूर ने कृपा की, कहंदे भलिया मैं तेनू बंदगी की राह तो तोरन तो पहला कुछ गल्लां तेरी झोली पाउणा चाहुंदा है। वो झोली च आ है, पहला तो अपने मन नूं पुछ भी तेनू सिमरन चंगा लगदा है। गुरबाणी विचों उदाहरणा दे दियां, साकत की बिद नैनो डीठी, मैं साकत की गल अपनी अखां नाल वेखी है। उहदी की अवस्था है, अमृत कौड़ा विख्या मीठी, उहनूं अमृत कौड़ा लगदा है। रब की बाणी पढ़नी होवे ते कौड़ी लगदी, अमृत बाणी है ना। निंदा करनी हो तो चंगी लगती है, निंदा करदे तो साडे गोडे नहीं ना थकदे। तुसीं कदे देखो आप गुरुद्वारा साहब आने, मेरी भी इहो तमन्ना है, मैं कोई तुहाडे तो बाहर नहीं, बस फर्क तेरे पे इत्थे बैठा है। मेरी भी तमन्ना हुंदी भी मैं कंध नाल किवें ला के बैठा, तो जदों आपां निंदा कर लैंदे कदे देखदे सोचदे भी उस कंध नाल आ जाओ, उत्थे बैठ के आपां निंदा करने, नहीं जिथे भी तुसीं बैठे हो मैं उत्थे ही बैठ जाऊँगा। मेरे लक ने भी साथ देना, मेरे गोडिया ने भी साथ देना। पर जो गुरु की बाणी सुनी ना भी किहड़े बड़े बंदा बोलना बंद करे तो असीं बाहर जाइए 5 मिनट उत्ते भी सानूं चुभन लग जाते हैं, क्योंकि सानूं चंगा नहीं लगता। हकीकत ये है, हकीकत ये है। पहला गुरु नूं बेनती करिए मालक तेरा नाम सानूं चंगा लगन लगे। चंगा इसलिए लाउणा चाहुंदा है क्योंकि जिहड़े मेरे प्यारे ने उन्होंने मैं याद रखदा नहीं, वो याद रह जाते हैं। बस मैं इत्थे तक पहुँचना चाहना, जिहड़ी गल तुहाडे सन्मुख रखनी चाहना वो ये है भई मेरे ते कृपा कर, मेरा मन रोगी ना होवे। पहला ते मैनू कृपा कर, ओ दातिया तेरा नाम मैनू मिठा ते लगन लगे ना, जे तुहानूं मिठा लगन लगेगा फिर तो मैं आपे भज के जावांगा। हाले मिठा नहीं लगता, हाले तो मैं जबरदस्ती कह के घड़ी देख के मैं 1 घंटा सिमरन करना तो मैं 1 घंटा देख के मसा पार लंघाना, चोरी चोरी वेखदा रहना भी घंटा कदों पूरा होएगा। ये सिमरन नहीं है। मैंने माफ़ करो जे ये हजे
अभ्यास है। ये भी करना जरूरी, कितने ऐसा ना एक भरम विच बिल्कुल ना पैना। ये अभ्यास है, एक दिन उत्थे तक भी पहुँचांगे। पर नाल गुरु अगे बेनती करिए, सतगुरु एक कृपा करो। तुसी कहंदे हो अमृत नाम सदा मन मीठा, शब्दे पावे कोई। तुसी कहंदे हो अमृत नाम ते बड़ा मिठा है। शेख फरीद की बाणी विच वचन आउंदा है, फरीदा शक्कर खंड निवात गुड़ माखियो माझा दुध, सभे वस्तु मिठियां रब ना पुजन तुद। तुसी कहंदे हो रब दा नाम ते बड़ा मिठा है। सभे वस्तु कौड़ियां सच्चे नौ मिठा, सारिया वस्तुआं कौड़ियां ने, एक सच्चे दा नाम मिठा है। जिहड़ी चीज़ प्यारी लगे उहनूं बंदा कदे नहीं त्यागदा, जिहड़ी ना प्यारी लगे उहनूं एक पल लाउंदा त्यागण नूं। पहला तां किरपा कर मैनूं तेरा नाम चंगा लगन लगे। जदों मैं कवां मेरी जबान ना कवे, मेरा हिरदा भी कवे। मैं वाहिगुरू कवां मेरे हिरदे चों निकले, मेरे अंदरों निकले वाहिगुरू। एक गुरबाणी का शब्द बहुत ध्यान नाल सुने जो, प्रभ जीओ तू मेरो साहिब दाता। हे प्रभु जी तू मेरा साहिब है, तू मेरा दाता है। प्रभ जीओ तू मेरो साहिब दाता, कर कृपा प्रभ दीन दयाला। मेरे ते कृपा करो दीना ते दया करन वालिया, मेरे ते कृपा कर। कर कृपा प्रभ दीन दयाला, गुण गावो। मैं इवें नहीं पढ़ना चाहता, बस आ कहानी है, इनू समझने की कोशिश करें। प्रभ जीओ तू मेरो साहिब दाता, कर कृपा प्रभ दीन दयाला, गुण गावो रंग राता। मैं तेरे रंग विच रत के गुण गावां, मैं तेरे प्यार में रत के गुण गावां। मैनू दुनिया भुल जाए, मैनू संसार भुल जाए, मैनू शरीर भुल जाए, जदों मैं तेरी इबादत करा, मैं तेरे प्यार में जुड़ा, मैं दिलों कह सका, केवल जबानों ना कमा। छोटी उदाहरण होर दियां। तुसीं कदे दर्जी नूं क्यों आपां घरां च भी कई बारी कपड़ा सीने, उहनूं आम जिहड़ा बंदा कपड़ा सी रिहा, तुसीं उहनूं कदे देखना, जिथे किते धागा टुट जाए वो मशीन रोक देंदा है, दोबारे धागा पा के सूई च, फिर दोबारे उत्थों ही शुरू कर दे जिथों धागा टुटिया सी। उन्होंने एक गल पूछी है भी भलिया जे धागा ही टुटिया है, बाकी तो मशीन चलती है ना, कपड़ा भी इधर की बजाय उधर कर दी है, वो कहते कर दी है। सूई शेक भी कर दी, कहना कर दी है। फिर जब सारा काम तो हो रहा, फिर तू रोकी क्यों मशीन? सिर्फ धागा टुटिया सी, मशीन तो नहीं ना टुटी, कपड़ा नहीं फटिया। वो कहता भलिया भी जे कपड़ा इधर दी सारा उधर भी चला जाएगा, अपनी अपनी थां ते सूई शेक भी कर देगी, सारा कुछ हो जाएगा, मैं भी मेहनत कर दिया थक जाऊंगा, सारी दिहाड़ी मशीन भी चलेगी, पर जदों दो कपड़े चुक के वेखांगा ना वखरे वखरे होणगे, क्योंकि धागा नहीं सी विच धागा नहीं सी। आ गल हुण अपने जीवन से सोच के देखियो। हजूर नूं पुछिए, मालिक कहंदे ने भलिया आही गल मैं तैनूं समझाउणा चाहुंदा, सोने की सूई जे तुहाडा ध्यान नामे भी है ना, इस गल ते तद भी एकागर करियो। कपड़ा नूं सीना धागे ने है, कपड़े नूं सीना धागे ने है, कपड़े नूं कपड़े नाल जोड़ के रखना धागे ने है, सूई ने नहीं रखना। सूई तो बल्कि रह जाए कपड़े च चुभन लग पवेगी, असीं कहने सूई कड्डो, सूई ने नहीं विच रहना, सूई ने बाहर निकल जाना है। पर वो जिहड़ा धागा है उन्हें विच रह के वो कपड़े नूं जुड़े होए नूं सदीव काल जुड़िया रखना है। मेरे हजूर आखते ने, कहते सोने की सूई गुरु का शब्द की है, हालांकि जोड़ के धागे ने रखना है, पर कला धागा तुसी सूई तो बिना लंघा नहीं सकते। जिहड़ी गल मैं कहनी चाहुंदा, रखना जोड़ के धागे ने, पर धागा कला लंघाया नहीं जाना। तुसी कोई उपराला करके देखो भी कपड़े में कल्ले धागे नाल सी ला, पकड़ के तो धागे नहीं रखना है ना। सूई का की रोल है? सूई का रोल यह है, सूई अगे अगे जाके तेरे उस कपड़े दे विच धागे नूं छड्डदी चली जाती है।
निकल जाती है आप बाहर, आप नहीं विच रहिंदी, निकल जाती है बाहर, पर धागे नूं छड्ड के पिछे जाती है। जिदन धागा पक्का हो गया सूई का काम खत्म हो गया। हजूर कहंदे शब्द है गुरु दा ओ है सोने की सूई, ते तू गुरु शब्द नूं छड्ड के सोचदा मैं कल्ले धागे नाल कपड़े सी ला, यह किवें हो सकदा? दस तू किवें सी सकना? कल्ले धागे नाल कपड़े नहीं सीते जाने, इस गल च कोई शक नहीं। पिछे तेनों सिमरन नहीं जोड़ के रखना, धागा जिहड़ा सिमरन ही है, सुरती है। पर जिहड़ा विचों काम करना वो धागा छड्ड के जाना, गुरु शब्द नहीं छड्ड के जाना। एक दिन वक्त आएगा जिस दिन तू रब नाल जुड़ गया, उस दिन सूई ने विचों निकल जाना। इस गल नूं थोड़ी तवज्जो दे के समझियो, किते शक ना करियो। मैं गुरु दे विचों सहारा लेके तुरना चाहना। जिहड़े आखिरी बचन ने ना, वो सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी के श्लोक ने, अखीर से उन्होंने भोग दे श्लोक अक्सर कहा जाता है। तुसीं कदे ध्यान दे के सुनियो, 57 श्लोक ने गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी के। उन्होंने 57 श्लोकों में 56 श्लोक वो ने जिन्हां विच नानक नाम आएगा। तुसीं जिहड़ा मर्जी श्लोक पढ़ के देख लो, मैं 2-4 पढ़ के तुहाडे ज्ञात में रखने आ। गुण गोबिंद गायो नहीं, जन्म आकार तकीन, कहो नानक शब्द आ गया ना, हर भज मना जे बिद जल को बीन। बखरे बखरे श्लोक ने, बाल जवानी और बिरध फुन 3 अवस्था जान, कहो नानक हर भजन बिन, नानक शब्द आ गए ना। 57 श्लोक ने, 56 श्लोक पढ़ के देखे, उन्हां विच नानक नाम आवेगा। ओ गुरु क्या सिखा, जदों तू रब नाल जुड़ गया, 57वां श्लोक पढ़ के देखी, उहदे च नानक नाम नहीं जे आउणा। शब्द बल ख्याल करियो, 57वां श्लोक की है? राम नाम उर मैं गए हो, रब का नाम तेरे हिरदे च आ गया। बस हुण कपड़े ने तेन सी के रखना है, धागे ने तेन जोड़ के रखना। हुण मेरा काम तो खत्म है ना। विचोला 2 धिरां नूं जोड़ के आपस विचों निकल ही जाता ना। जैसा सतगुर सुनीदा तैसो ही मैं डीठ, विछड़िया मेले प्रभु हर दरगे का बसीठ। ये गल चेता रखी, रिश्ता तेरा विचोले तो बिना नहीं होना। कोई ना कोई विच मीडिएटर चाहिए तेनू, कोई ना कोई विच विचोला चाहिए, उहदे तो बिना नहीं जे होना। रिश्ता विचोले तो बिना नहीं होना, पर रिश्ता होने तो बाद विचोले ने विच भी नहीं रहना। कपड़ा तेरा धागे तो बिना नहीं सीता जाना, धागे नहीं तेनू जोड़ के रखना है, पर धागा तेरा सूई तो बिना बिच नहीं जे टिकना। एक गल चेता रखियो जे, सूई दे नाल ही धागा बिच रह सकता है। हजूर ने बड़ी प्यारी कृपा की, बख्शिश की, कहने लगे सोने की सूई रुपए का धागा। हुण जदों सूई बाहर निकली, मालिक ने अमृत बचन बख्शिश किया, राम नाम उड़ मैं गए हो, जांकै सम नहीं कोए, जय सिमरत संकट मिटे, दर्श तुहारो होए। हुण इच नानक शब्द नहीं है, आखिरी श्लोक है, आखिरी श्लोक है। सूई लै कपड़े सी, गुरु शब्द नूं सुन, गुरु शब्द तो भी हुणा सिमरन ना करी, तेनू कुराहे पा देगा। गुरु शब्द तेरे सिर ते कुंडा रखेगा, गुरु शब्द तेरी हौमे नूं धोंदा रहेगा। गुरु शब्द तेरे अंदरों, गुरु 2 काम करदा है, हर नामों मंत्र दिलड़ाएंदा। उदाहरण ही दे दिया, उदाहरण नाल गल सौखी समझ लग जाती। एक किसान है, वो खेत बीजदा है, तो खेत नूं बड़ी सवार के बाह के धुप लवा के स्प्रे करके विच एक्सट्रा चीज़ कोई ना होवे, कितनी मेहनत करता है। बीज एक एक चुन के अपने हत्थों के विचों दी फिर उन्होंने बीजदा भी, कोई विच इहदे भी शामिल ना होवे। पर की तुसीं देखिया भी किसी खेत में इन्ना बाह सवार के बीजिया होवे, एक एक बीज जान के बीजिया होवे, तो उत्थे कल्ले ही बीज पैदा होए होण, उत्थे घाह फूस पैदा हुंदा ही है ना। फिर पुराने समय गोडी हुंदी सी, अज स्प्रे है, जिहड़ियां फालतू चीज़ां ने उसी स्प्रे करके उन्होंने खत्म करने। फिर भी उन्होंने किसान नूं कितना सियाणा होना पैंदा है, भई किते ऐसा ना होवे भई जिहड़ी खेत विच मेरे फालतू घाह फूस पैदा हो गया, तो मैं खुराक पावां वो घाह फूस नूं ही लगी जावे। किते ऐसा ना होवे मैं फालतू बूटे कढ दियां, सिर्फ वो बूटे रखां जिहड़े मेरे खेती दे ने। हुण वो गोडी करनी, स्प्रे करना बड़ी सियाणप की लोड़ है। दाना तो धरती च आम मनुख भी सिड़ सकता है, पर वो बड़ी सियाणप की लोड़ है। मैं किहड़ी स्प्रे करा जिहड़ी खेती नूं ना उजाड़े, सिर्फ घाह फूस नूं उजाड़े।
हजूर कहते भलिया पुरखा एक गल चेता रखी, जदों तू हिरदे की खेती नूं वाह सवार के एन बिल्कुल पद्धरी करके ते नाम का बीज पोएगा ना, ये बीज भी तू नाम का पाया, हिरदे की खेती भी संभाल के रखी है, पर तेरे ना बीजण के बावजूद भी हिरदे च काम क्रोध लोभ मोह हंकार ईर्खा द्वेष भावना आ जिहड़ी हउमे है, ये बूटे बड़े 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 पैदा हो जाने। फिर गुरु नूं नाल नाल रखी। गुरु की करेगा? गुरु नाम के बूटियां नूं तां बचाई रखेगा, जिहड़े विकारां दे बूटे ने हउमे दे बूटे ने उन्होंने कट कट के बाहर सुट्टी जाएगा। गुरु का काम तो यहो है ना, जैसा सतगुर सुनीदा तैसो ही मैं डीठ, विछड़िया मेले प्रभु हर दरगह कब सीठ, हर नामो मंत्र दिरड़ाएंदा। नाल दी पंक्ति की है, कट्टे हउमे रोग। फिर तू ये नहीं कहेगा मैं 2 घंटे सिमरन करदा, फिर तू कहेगा आप जपाए जपै सो नाओ, आप गवाए सो हर गुण गाओ। फिर बस आ कहानी वरतनी है। जे गुरु नाल होया फिर ये नहीं होगा भी मैं आ करदा, फिर तो कहेगा मालिक मेरे च की ताकत सी। फिर तो गुरु रामदास वर्गी निमरता आ जाएगी। हर के जन सतगुर सतपुरखा, बिनो करो गुर पास, हम कीरे किरम। मैं तो एक गंदगी का कीड़ा सतगुरु आप कह सकते हैं। जेड़ा भी बंदगी करन वाला अपना नाम उच्चा करवाउंदा है ना, याद रखियो हजे वो गुरु नाल नहीं जुड़िया, भावें अपने आप को कुछ भी कहता रहे। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ गुरु शब्द की फकीरी ਉਹਦੇ अंदर होनी चाहिए है। ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਦਿਖਾਵੇ ਵਿੱਚ नहीं ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੱਗੋ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਮਤੀ ਦਾਤ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। हर नाम पदार्थ पाए के कबीरा गांठ ना खोल, न पट्टन न पारखू, नहीं गाहक नहीं मोल। जेड़ा पहली अवस्था यह सी भई रब दा नाम सानू मिठा लगन लगे, जिस दिन गुरु कोल आके अरदास करेगा, गुरु कोले ताकत है मेरा वैद गुरु गोबिंदा। अगली पंक्ति की है, हर हर नाम औखद मुख देवे। बच्चा दवाई नहीं ना खांदा, बच्चा दवाई नहीं ना खांदा, बच्चा दवाई औखी खांदा है। तो माँ की करती है, माँ दवाई वो हाथ च नहीं पकड़ाउंदी, उन्होंने पता है इन्हें डोल देनी है। माँ को पता है इन्हें डोल देनी, तो मेरे हत्थों तो नहीं लेंदा, तो कला किवें दवाई ले लेगा। फिर माँ उन्होंने बुक्कड़ च पाउंदी, उहदी बाहमां पकड़दी, मूँह च चमचा पाउंदी है। जदों बच्चा मूँह च भी दवाई रख लैंदा, नहीं अंदर लंघाउंदा, तो माँ उहदा नक बंद कर देंदी, पुत्रा साह लेगा तो अंदर जाएगी दवाई, मैं दवाई तेरे अंदर भेजनी है। हजूर कहते भलिया मेरा गुरु एडा सियाणा वैद है, और उन्होंने पता भी तैनू रब का नाम चंगा कोई नहीं जे लगता। उन्होंने पता है असी तो धोखा खा सकते, उन्होंने थोड़ा धोखा है। वो फिर हर हर नाम औखद मुख देव है, काटा जम की फंदा। फिर जदों औखद मुख दिता वो वैद है, वो सियाणा, उन्होंने पता भी इहदा इलाज हो गया। जदों इलाज हो गया हुण वो आपे कहन लग गया, संत संग अंतर प्रभ डीठा, नाम प्रभु का लागा मीठा। गुरु तेरी बड़ी कृपा हुई, मैं हुण अंदर अपने रब नूं देखण लग पिया, ते मैनूं अंदर एहसास होण लग पिया रब दा। हुण तू ना भी कवावें, हुण ते सुपने विच तुसीं मिले असानू, असां धागल वकड़ी पाई, निरा नूर किश हथ ना आया, साडी कंबदी रही कलाई। तेरे तो सुपने भी आउण लग पए ने। मैनूं तो तेरे नाल इन्नी याद बन गई है, इन्ना तेरा प्यार बन गया, मेरी जुबान थकदी नहीं है। हुण ते कहंदी है मैं वाहिगुरू वाहिगुरू करदा रवां। मैं रोज़ अरदास करदा, सही प्यारे मेल जिन्हां मिलिया तेरा नाम चितावे, से संजोग करो मेरे प्यारे, जित रसना हर नाम उचारे। ऐसे संजोग बना मैं भुल भी जावां, ऐसे सतसंगी होण जिन्हां कोल बैठ के मैनूं रब दा नाम चेता आ जाए। पर मेरे कर्म विचों प्रगट होण, लोग मेरी जीवन नूं वेख के कहण भी ये बंदगी वाला पुरख है। लोग मेरी माला तो अंदाजा ना लाउण, लोग मेरे वाहिगुरू वाहिगुरू कहण तो अंदाजा ना लाउण, लोग मेरे कर्मां चों वेखण, लोग मेरे कर्मां चों वेखण। एक बेनती होर करां, किसी ने बोझे च सुगंधी पाई होवे, चंदन पाया होवे, उन्होंने कहण दी लोड़ ते नहीं ना पैंदी भी मेरे कोल चंदन है। लोग पुछणगे भी बड़ी वक्री किस्म की स्मैल आ रही है, किहड़ा परफ्यूम वरतदे हो?
फिर तुसी कहोगे मेरे बोझे च चंदन है। हुण उन्हें चंदन वेखिया नहीं, पर चंदन की खुशबू ने दस दिता भी को कुछ है। इसे तरह सजना तू गुरु नाल जुड़िया होवे ना, गुरु दीयां गल्लां। एक शब्द मैं होर कहना चाहना, फिर आप अगले दा पंथ तय करने। अज मैं तुहानूं जल्दी नहीं जे जान देना, कल तुहानूं छुट्टी है। जिहड़ी बेनती कर लगा सो उहनूं चेते रखियो। हजूर ने गुरबाणी विच एक बड़ा प्यारा बचन आखिया, कहन लगे जिहड़ी गल तेरे अंदर होवे ना वो तेरे कर्मां विचों बाहर प्रगट होवे, तेरे जीवन विचों बाहर प्रगट होवे। जे तू अंदर बैठ के रब्बी इबादत कीती है ना, अंदर बैठ के रब दा सिमरन कीता है ना, रब्बी याद में जुड़िया ना, तो ये गल्लां तेरे कर्मां विचों तेरे किरदार विचों प्रगट होण। जिहड़ी गल कहन लगा सा, हुशियारपुर के इलाके में एक पिंड का नाम है कंग माई। कंग मई भी कहते हैं। आ जिहड़ा हुशियारपुर का इलाका ना, ये हालांकि गुरु साहब ने बड़ियां रहमतां बरसाइयां ने, पर इलाका धर्म तो पछड़िया रहा है। मैनूं माफ़ करियो, मैं किसी के उत्ते टिप्पणी नहीं करता। अज भी उत्थे जिड्डियां जठेरियां दियां थावां ने ना, उत्थे धर्म की गल नहीं होनी, अज भी नहीं। इस इलाके दे विच बड़े 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 महान गुरु के सिख पैदा हुए ने। इस इलाके विच एक सखी सरवरी, सखी सरवरी की है? ये सरवरी एक पीर है, समझ लो बस। तुसीं मुसलमान सी, ये बड़ी इबादत करते सन लोग। इस इलाके में सारे लोग सखी सरवरी के पुजारी सन, घर में उहदियां समाधां बनाईयां होंदियां सन। इस गुरु के सिख जिहड़ा इहदा पहला जीवन है, इहदा नाम है भाई तीरथा। इहदे घर च भी समाध बनी हुई है, सारा परिवार भी पूजदा है, इलाका ही पूजदा है, सारे दा सारा। और ये भाई तीरथा एडे सारे इलाके विचों एडा सियाणा है। ये 72 पिंडां दा चौधरी है। चौधरी उहनूं कहंदे सन भी जिवें एक पिंड की पंचायत है, 2 पिंडां की पंचायत है। कई बारी कोई फैसला करना हुंदा सी ते 5 पिंडां की पंचायत मिलकर फैसला करती सी। ये 72 पिंडां दा चौधरी सी, जिहड़े फैसले 72 पिंडां की पंचायत भी मिलके ना कर सके, वो जिवें राष्ट्रपति नूं आखिरी हक हुंदा है, इसे तरह चौधरी नूं आखिरी हक हुंदा सी भी जो तुसीं फैसला दे दोगे वो असीं मन्नांगे, उहदे ते टिप्पणी नहीं हो सकती। हुण 72 पिंडां दे उत्ते चौधरी है, तुसीं हिसाब लाओ उहदी किड्डी वड्डी गल होएगी। ये 72 पिंडां दा चौधरी, सखी सरवरी दा पुजारी ते अपने घर विच कबरां बना के पूजन वाला, घर इहदा बड़ा वड्डा खुला चौड़ा, सारे इलाके विच इहदी चर्चा, बड़ा अमीर बंदा, 4 पैसे घर विच ने, औहदा बड़ा वड्डा इहदे कोल। इहदे कन्नां विच बोल पै गए धन गुरु अर्जन पातशाह जी महाराज दे। ये गुरु अर्जन पातशाह जी दे बोल सुन के संगत विच सखी सरवरी दे डेरे तो आया सी। तुहानूं किते वक्त मिले ना, ज्ञानी दित सिंह ने बा कमाल चीज़ां लिखियां ने। ज्ञानी दित सिंह ने नंगे पिंडे सफ़र किया है। उदों भी कर्म कांड की प्रभाव बहुत ज़्यादा सी। दरबार साहिब दीयां प्रकरमां च मूर्तियां पईयां सन। ये ज्ञानी दित सिंह वर्गिया ने कौम नूं हिला के उदों कढ़िया बाहर, बड़ा वड्डा उपराला किया उन्होंने। बाबा खेम सिंह बेदी गुरु नानक साहब की अंश वंश विचों वो दरबार साहब गद्दा ला के बैठ गया सी। ज्ञानी दित सिंह ने समेत गद्दे समेत बाबा खेम सिंह बेदी नूं चुक के उहदे विच सरोवर च सुੱਟਣ लग्या सी, पर खेम सिंह बेदी पासे हो गया। तो यह उदों लोग कहते सन गुरु की औलाद है तो इन्हां दी उलंघना नहीं करनी, पर उस ज्ञानी दित सिंह ने गुरु तो उत्ते गुरु की औलाद नहीं मनी। अज भी लोग ने जिहड़े बाबा श्री चंद का सहारा लैके कौम नूं गुमराह कर रहे हैं। एक गल चेता रखियो, गुरु का सिख, गुरु का बंधप, गुरु का रिश्तेदार, गुरु का पुत कौन है? सो सिख सखा बंधप है भाई, जे गुर के भाणे विच आवे। अपने भाणे जो चले भाई विछड़ चोटां खावे। मैं लम्मा खलारा ना पावां, जिहड़ी बेनती करन लगा सां
ये भाई तीरथा, इन्हें गुरु के बोल सुने। बोल सुन के गुरु अर्जन पातशाह जी महाराज को आया, कहने लगे सतगुरु मैनू सिक्खी की दात बख्शो। अज तो असीं मिन्नतां करते हैं ना, पुराने समय में मिन्नतां नहीं सी करते, टणका के सिक्खी दी जाती सी, टणका के। हजूर कहने लगे कित्थों आया? कहने लगे कंगमई तो आया। की करदा हुंदा? कहने लगे 72 पिंडां दा चौधरी है, कारोबार चंगा है। साहब कहने लगे तू ना इस काम च पई, तू ना इस काम च पई, तू भला चंगा सरवरी की पूजा करना करी जा। ज्ञानी दित्त सिंह दे बोल कहन लगा सा, उन्हें बड़ी प्यारी बात लिखी आ, हुण कन खुल के सुने है, मैनू भी औखा कहना, सच है। जे सरवर देंदा है पूत, जिसते खाइए उसदे जूत। कि सरवर पुत देंदा है जिहदे करके असीं उहदी जुत्तियां खांदे फिरीए। स्पष्ट लफ्ज़ां विच ज्ञानी दित्त सिंह की लिखत बिल्कुल स्पष्ट है। उन्हें फिर कोई कुछ उदाहरण दित्तियां ने। ये जो कुत्ती सूई कल, बैठी है घर तेरा मल। कहने लगे जिहड़ी कुत्ती दे बच्चे होए ने तेरे घर दे कोल गुआंढ विच, ये जो कुत्ती सूई कल, बैठी है दर तेरा मल। किए गई सरवर दे चाले। कहते दसे किते सरवर दे चाले ते सरवर दे मेले ते गई सी है। जे रब इनू बच्चे दे सकदा, वो एक कुत्ती नू इतबार है रब ते, तेनू बंदा होके इतबार नहीं। फिर उन्हें बचन आखे ने, कहन लगे फिर मुर्गी दे गिन लै आंडे, जे के भर देंदी है भांडे। क्या ये सरवर दी है चेली, बंड चूरमा सीए खेली। कहते मुर्गी नू देख लै आंडे दे दे के भांडे भर देंदी है, वो सरवरी दी चेली है। जे रब ओनू दात दे सकदा, तैनू क्यों नहीं दे सकदा? तू मनुख है। मैं गल लम्मी ना करा, वापस परतन लगा। वो सखी सरवरी नू, उहदे उपासक नू, भाई तीरथे नू गुरु अर्जन महाराज जी कहन लगे भी देख तेरे बस की गल नहीं, तू रहन दे, तू छड्ड इस धर्म नू, तू कमा ही रहा। वो कहने लगे महाराज जी नहीं, जेड़ा मैं कमा रहा ना तो कर्म कांड ही है। सच करके जाने, मैनू पता अज लगे वो तो कर्म कांड ही है, तो तुसी सिक्खी की दात मैनू बख्शो। हजूर कहन लगे ये गल चेता रखी, सिक्खी के राह ते तुरना है तो तेनू बहुत कुछ त्यागना पै सकदा है। धन है भाई तीरथा। उन्हें एक बचन आखे, सतगुरु सब चीज का विछोड़ा सह लांगा, पर तू नाम तो विछोड़ा ना पाई। बस मैं हर चीज का विछोड़ा सह लांगा, तेना वादा करना, पर तू कदे नाम का विछोड़ा ना पाई। जदों मैं मरना, मैं तेरे नाम तो टुट के मरना, तेरी बंदगी तो, तेरे बचना तो टुट के मरना है। नहीं मैं मरदा। इनू देखियो जे सिक्खी की है। सब कहने लगे चंगा जे तेरी मर्जी है, तू एडा दृढ़ है, कोई गल नहीं, फिर सिक्खी मिल जूगी, पर तेन एक काम करके आना पैना। गुरमत का असूल है, वस्तु अंदर वस्त समावे, दूजी होवे पास। पहले तेरे घर च तो कबरां बड़ियां ने, ते तू कल सिक्खी की गल कहेगा, सिक्खी कबर नूं मनदी कोई नहीं। दो गल्लां किवें होणगियां? सिक्खी उत्ते सिक्खी नहीं टिकनी। पहला अपना घर खाली करके आ। इन्हें आके पातशाह सत बचन। हुण घर गया, घर जाके इन्हें कही चुकी ते कबरां ढाउण लग पिया। पिंड दे नगर दे लोग नेड़े तेड़े दे आए, वो कहण लगे कमलिया तू की पुठे काम करन लगे, बुरे काम करन लगे, तू कबर ढाउण लगे, ये पीर ने तेनू बर्बाद कर देना। उन्हें आख्या कोई गल नहीं, जे बर्बाद करेगा तो हुण मैनू आबाद करन वाला भी मिल गया, जे बर्बाद करेगा तो आबाद करन वाला भी मिल गया, कोई चक्कर नहीं। उन्होंने कबरां ढालतियां, पद्धरियां कर दित्तियां, घर वाली ने भी साथ दिता। इक्को एक कहदे बच्ची सी, इक्को एक कहदे धी सी। मैनू माफ करियो, जिहड़ा लड़कियां दे कतल करन दा कारण है ना, उन्हां विचों प्रचारक भी बहुते ने।
ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਪੁੱਤੀ ਗੰਢ ਪਵੇ ਸੰਸਾਰ ਜਲ ਕੇ। ਉਹਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ, ਪੁੱਤੀ ਗੰਢ ਪਵੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕਿਸੇ ਮੋੜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤਕਰਾਰ ਕਰ ਬੈਠਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜੇ ਭੰਡ ਮੂਆ ਭੰਡ ਭਾਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਭੰਡ ਮੂਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਭੰਡ ਭਾਲਣ ਦਾ ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਟੁੱਟਦੀ ਹੋਈ ਗੰਢ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 4 ਕੁ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਿਆਰ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਤੋੜ ਬੈਠਣ ਲੱਗੇ ਸਾਂ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਇੱਥੇ ਮਸਲਾ ਧੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮਸਲਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤਾਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਧੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰੱਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਧੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਧੀ ਜੰਮ ਪਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਜੀ ਨੇਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਵੀ ਆਏਗਾ। ਆਸ ਫਿਰ ਵੀ ਲੜਕੇ ਦੀ ਖਲੋਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਗੱਲ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਇਹ ਸੀ, ਇਸਤਰੀ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਵੈਰੀ ਨਾ ਬਣੇ, ਇਸਤਰੀ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਵੈਰੀ ਨਾ ਬਣੇ, ਇਸਤਰੀ ਸਗੋਂ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਰੱਖੇ। ਖੈਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਇੱਕ ਧੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਧੀ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਇਆ, ਪਤਨੀ ਨੇ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਕਬਰਾਂ ਢਾਹ ਕੇ ਭਾਈ ਤੀਰਥਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਢਾਹ ਆਇਆ। ਨਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੇ। ਭਾਈ ਮੰਝ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰੀ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ। ਐਡੀ ਮਹਿੰਗੀ ਸਿੱਖੀ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਤੂੰ। ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਚੌਧਰੀ ਕਦ ਕਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਆਪ ਚੱਲਿਆ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣ ਕੇ। ਉਹ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਉੱਚੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮੱਝ ਅੱਜ ਹੱਥ ਖਲੋ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਕਬਰਾਂ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਉਸ ਪੀਰ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਰੋਟੀ ਬੇਟੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਤੇਰਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ 72 ਪਿੰਡ ਤੇਰੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਾ ਆਈ। ਭਾਈ ਮੰਝ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠਾ। ਬਚਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਣਾ, ਕਬਰਾਂ ਬਣਾ ਲੈ। ਭਾਈ ਮੰਝ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਛਤਾਵੇ ਦੇ ਅਥਰੂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਅਥਰੂ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਅਥਰੂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਕਿੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਹੰਕਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਚੌਧਰੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਨਾ ਵੀ ਕੱਲਾ ਅੱਜ ਤੂੰ ਕਿੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੀ ਕਬਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਚੌਧਰੀ ਥੋੜਾ ਮੈਂ। ਭਾਈ ਮੰਝ ਘਰੇ ਆ ਗਿਆ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਸਾਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ, ਕੁਝ ਕੌੜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਚੌਧਰੀ ਰਿਹਾ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੇ ਔਖੇ ਹੋਣਗੇ।
उन्हें आख्या गुरु अर्जन पातशाह ने एडी मेहर की, उन्होंने एक एक कौड़ा शब्द भी मैनू मिठा लगन लग पिया। मैनू नहीं कौड़ा लग्या, नहीं कोई बुरा लग्या। घर वाली भी हैरान है। वक्त कई तरह दी अजमाइशां लैंदा है। मुसीबतां सियाणे कहंदे ने कट्ठियां होके आउंदियां ने, कदे कल्लियां नहीं आउंदियां। चौधरपना जांदा लग्या, लोकां नफरत करनी शुरू कर दित्ती। वक्त आया घर विचों जिहड़े बैल सन, बैल भी मर गए। लोकां फिर क्या कहन लगे, पीर दा सराप पै गया। भाई मंझ फिर शुकराना करिया करे गुरु दा, गुरु जिहड़ियां चीज़ां कल छड्डणियां सन तूं आपे ही छुड़वाई जाना, किड्डी किरपा मेरे ते। ओहदे घर दियां मੱਝਾਂ सन, ओहदियां मੱਝਾਂ भी मर गईयां। जेड़े घर 72 पिंडां दा चौधरी जिहदे घरों कल लोग दुध लैके जांदे सन, गुरु क्या सिखा सिक्खी नूं देख, अज ओहदे घर दियां मੱਝਾਂ मर गईयां। किसी दे घरों दुध लैण नहीं जा सकदा, क्योंकि नगर वाले सारे लोगों ने उन्हें छेकिया होया। सवेरे उठ के मुँह धो के अपने कम्मे कारी लग जाते ने, किसी को दुध पीण का भी कोई साधन नहीं है। शुक्र है जबान उत्ते, इनू कहंदे ने सिमरन, तेरे कम्मां चों पता लगे। मੱਝਾਂ मर गईयां, बैल मर गए। बहुत चंगी घर विच घोड़ी सी, पुराने समय च चंगी घोड़ी रखनी एक रिवाज हुंदा सी, घोड़ी भी मर गई। अज घर वाली बैठी है ते भाई मंझ बैठा ते उन्हां दी बेटी बैठी, तिन्ने जने बैठे ने। कहन लगे अज प्रसादा नहीं बनाना। घर वाली कहन लगी घरे आटा है नहीं, कुछ है नहीं खाण जोगा, कुछ भी नहीं है। मंग किसी तो सकते नहीं, लिया किसी तो सकते नहीं, उधार कोई देना नहीं सी किसी ने। भाई मंझ ने अज एक चादर चुकी, एक रंबा चुकिया, ते किसी ने खेत विच भी नहीं वड़न देना। घाह राहां विचों घाह खुरचिया। 72 पिंडां दा चौधरी आ, रस्ते चों घाह खोच के, घाह खुरच के, पंड बन के, पुराने शहरों विच घाह दीयां मंडियां हुंदियां सन, घाह दी मंडी च चला गया। घाह दी मंडी विच घाह दी पंड बेची, जिहड़ा आना दोआं ने पैसे मिले ओहदे नाल लिया के घर दा रस्ट पानी। घर वाली नूं कहण लग्या भगवान ने एहदा अज प्रसादा बना। साइयां सुक्कियां रोटियां ने, भगवान ने अज सुक्कियां खाण दा किन्ना आनंद आएगा। अज आप अपनी कमाई दी खाण लगे हैं। कित्थों लैके आए हो? कहण लगे मैं घाह खुरच के, घाह खुरच के, घाह खोद के घाह मंडी च वेच के आया। तू 72 पिंडां दा चौधरी अज सिक्खी दी खातर घाह खोचदा फिरदा है। वक्त आया, गुरु अर्जन पातशाह ने सुनेहा भेजिया, मेरे सिख दे कोलों थोड़ी जी माया लैके आओ, आओ उन्होंने हुक्मनामा दे के आयो। उहदा कोई दसबंध, उहदी कोई सेवा होएगी। हुण वो सिख आया गुरु दे कोलों, आके उन्हें हुक्मनामा दिता, पर पहला कहा भी सजना तेरा दसबंध तेरी भेटा, ते पहला गुरु साहब नूं भेटा कर। पिंड दे सियाणे बंदे कोल चला गया। शाहूकार नूं कहण लगा भी सजना बाकी तो तुसीं लेण देण मेरे नाल नहीं करदे, पर करजा तो दे सकदे हो ना, करजा तो दे सकदे हो, मेरे वर्तन ना करो। अज मैनूं पैसिਆਂ ਦੀ लोड़ है, मैनूं पैसे दे दे सजना। अज तू चाहे मेरी जिंद, मेरी जान, मेरी खल दे मौजे बना के पा लै, पर मैनूं पैसिਆਂ तो खाली ना मोड़ी। मैं बड़ा बड़ा एक चीज़ अज मालक दी लैनी है, वो इतने सस्ते भाव ते लगी हुई है, अज किते मैं खाली ना रह जा। किन ही बन जिया कांसी तांबा, किन ही लौंग सुपारी, संतो बन जिया नाम गोबिंद का। शाह नूं तरस आया, उन्हें कुछ पैसे दे दिते, लिया के भाई मंझ ने ओहदे तली ते रखे। मांझे दा लास्ट नेम सी, ओहदे तली ते रखे ते हुक्मनामा लिया। हुक्मनामा लैके जदों हुक्मनामा पढ़िया
भी तेनू गुरु याद कर दे, तू वापस आ जा मेरे को। सिख नूं चाह चढ़ गया, गलवकड़ियां पावे सुनेहा लेके आने वाले लोग। गुरु अर्जन पातशाह एडे उहदे सिख, इन्नी उहदी दुनिया, उहने मैनू गरीब नूं याद रखिया होया, उहने मैनू बुलाया। मैं तो किसी भी काम का नहीं सा, गुरु अर्जन पातशाह ने मैनू बुलाया। सिखा तू एक बारी फिर कह भी गुरु ने तेनू बुलाया। गुरु दे कोल दातां लेके, हुक्मनामा लेके सिख ते वापस चला गया। भाई तीरथा, भाई मंझ गुरु चरणों में चला गया। जाके नित दिहाड़े लंगरां वास्ते लकड़ां लेके आउंदा है। कुछ दिन लंघे, गुरदेव ने हजे होर टणका के देखना है, हजे होर टणका के देखना है। गुरदेव ने बचन आखे, कहन लगे भलिया भाई मंझ की करदा उन्हें? कहन लगे सतगुरु लकड़ां लेके आउंदा लंगर विच, बाकी समा की करना है? सेवा सिमरन विच लंघ जांदा है, प्रशादा पानी कित्थों छकना है? सतगुरु जी तुहाडे दिते हुए लंगरां चों। हजूर कहन लगे एक भार लकड़ां दा लिया के 3 वक्त प्रशादा छकना, तू ये सेवा काहदी करना? फिर तू सेवा ना कह, फिर तो तू ये कह भी मैं लकड़ां दा एक भार लेके आउणा, रोटी 3 टाइम खाना है, प्रशादा 3 टाइम खाना है। कंब गया अंदरों। कहन लगे सतगुरु गलती मेरी, छोटी मत सी, नहीं समझ सकिया, ये गल नहीं जान सकिया, नहीं पता लग्या। कल तो बाद भरियां 2 लेके आवांगा, पंडा 2 लेके आवांगा, प्रशादा भी 2 टाइम छकांगा, 3 वक्त नहीं छकदा। इनू कहंदे ने ओ सिक्खी, इनू कहंदे ने सिमरन करना। 2 वक्त भार लेके आउण लग पिया लकड़ां दे, ते प्रशादा पानी 2 वक्त छकण लग पिया। अज 2 गेड़े लाउणे सन, ते अज ओ जद दूजा गेड़ा ला के आउण लगा तो रात का वक्त हो गया, हनेरा। अज वर्गे चानण नहीं सन। लकड़ां लेके आउंदे आ भार, जिवें किसी वेले गुरु अमरदास जी के कदम थिड़क गए सन, ते इसे तरह ये कदम थिड़क गए, राहे तो कराहे पै गया। अगे खूह सी, खूह के उत्ते उहदा मूँह नहीं सी बनाया होया, ते सीधा ही सी खूह, ते उहदा पता ना लग सकिया, खूह दे विच डिग पिया। धन्ना गुरु क्या सिखा, खूह दे विच डिगिया होया, रब दी बाणी पढ़दा, वाहिगुरू वाहिगुरू उच्ची उच्ची करदा, साईं दे चरनां विच जुड़िया होया, उलामे नहीं देंदा। सवेर दा वक्त आया, सारी रात पानी च खलोता रहा। सवेर दा वक्त आया, ते जदों पता लग्या, उन्हां लागे बने किसी ने सुनिया, ते उन्होंने जाके गुरु अर्जन पातशाह जी ने दसिया, आ देखो सिखा, जिस दिन तू सिक्खी कमा ली, गुरु अर्जन पातशाह जी नंगे पैरी भज के आए, ते उस खूह को आ गए, ते पिछों सिख रस्से लेके आए, ते सतगुरु जी ने आके बचना क्या कहन लगे, भाई मंझ मैं आ गया। साहब कहन लगे मैं आ गया, भाई मंझ दियां धाहां निकल गई। सतगुरु तेरे तो बिना होर किने आउणा सी, मेरा गरीब दा तेरे तो बिना कौन है, होर किने आउणा सी। साहब ने रस्सा लटकाया, कहन लगे लकड़ां कढ़ लै। कहन लगे ना दातिया, इन्हां लकड़ां ने तो गरीब नूं तेरे चरनां विच जोड़ के रखिया, पहलां लकड़ां कढ़, मैं बाद विच निकलांगा। मैं लकड़ां लामे रख के नहीं आउणियां। लकड़ां पहलां कढ़ियां, भाई मंझ नूं कढ़िया रस्से नाल। जदों भाई मंझ नूं कढ़िया, गुरु दे चरनां ते गुरु लकड़ी च लेना चाहुंदे ने। भाई मंझ ने गुरु दे चरनां ते सीस रख दिता, तू मैनू किन्ने खूहां चों कढ़िया, तू मैनू किन्ने खूहां चों कढ़िया। पहले खूह चों कढ़िया, मैं सरवरी दा चेला सी, डुबिया पिया सो उत्थे कबरां दी पूजा करदा, तू उहदे विचों कढ़ के मैनू सिक्खी दित्ती। फिर मैं चौधर पुणे दे खूह च डिगिया पिया सा, तू उत्थों कढ़ के मैनू सिक्खी दित्ती। फिर मैं मोह ममता च फसिया पिया सा, तू मेरियां मज्जां सब कुछ मार के तू मैनू उस खूह चों कढ़िया, मैनू सिक्खी दित्ती। फिर मैं अपने मान हंकार विच सेवा दे विच डुब गया। मैं ते लकड़ां लेके आउणा ते तेरे लंगर चों लंगर छक लैना, फिर तू मैनू इस खूह चों भी कढ़िया। अज मैं आ दुनियावी खूह चों डिग पिया सा, सतगुरु तू मैनू इत्थों भी कढ़ दित्ता, किन्ने खूह चो कढ़ेगा। मैं ठोकरां खाण वाला किसी न किसी खूह च डिग पैना।
ਸਾਹਿਬਾਂ ਗਲਵੱਕੜੀ ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਮੰਝ ਹੁਣ ਤੂੰ ਖੂਹ ਚ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੇਗਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਖੂਹ ਚ ਡਿੱਗਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢੇਗਾ। ਮੰਝ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕੋ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਮੰਝ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕੋ गुर मंच प्यारा, मंच गुरु का बोहे था जग लंघन हारा। जेड़ा आप कदे जहाज सी अज उन्हें भाई मंच नूं जहाज बना दिता। जेड़े भी किसी दे जीवन की बेड़ी डुबदी होएगी, भाई मंच तेरा जीवन पढ़ के वो सिक्खी दी रात ले लेगा ना, यकीन करके जानी है लोकां नूं भी तारन वाला बन जाएगा। बस अपने जीवन विच इन्हां गल्लां नूं धारण करिए, गुरु अगे अरदास करिए। पंक्ति सी अज दी, मंग ना मंगन नीका। मंग यकीनन मंग, मंगना जरूरी है, पर बाकी दाता मंगदियां मंगदियां किते भुली ना जाई भी मैं तेरी याद ही ना मंगा। मंग ना मंगन नीका, हर जस गुर ते मंगना। किहदे कोलों मंगना है? एक पक्ष हजे भी अधूरा रह गया। किहदे कोलों मंगना है? एवें देहधारियां दे तां भटकदा रमी। किहदे कोलों मंगना है? हर जस गुर ते मंगना। समा तो बहुत ज़्यादा ही ले गया अज मैं, पर एक गल कह के मैं समाप्ति करन लगा। जिथे वस्तु पई होवे ना, सानू उत्थों लभनी चाहिदी है ना। सोई सरबर ढूंढ लहो जिथों लभी वथ। छप्पड़ ढूंढे क्या लहै, चिकड़ डुबे हथ। वो सरोवर भाल लै जिथों वस्तु होवे। एवें छप्पड़ा चो भालेगा, हथ मूँह काला करके बैठ जाएगा, चिकड़ नाल लबेड़ बैठेगा, लभना कुछ भी नहीं। छप्पड़ा से कुछ भी नहीं हुंदा। सतगुरु जी मैनूं तुसीं दस दिओ भी वस्तु कित्थे पई है। वस्तु कित्थे पई मैनूं नहीं पता, मेरी अकल छोटी है। साहब कहने मैं दस देना कित्थे पई है। एक नहीं पईयां बल्कि कई पईयां ने। थाल विच 3 वस्तु पईओ। कित्थे पईयां ने? थाल विच। कित्थे पईयां ने? थाल विच। ते खोजदे कित्थे फिर रहे हैं? जिथे पई है ना वस्तु उत्थे खोजनी चाहिए है ना। खोजदे कित्थे फिर रहे हैं? वह गुरु ग्रंथ साहब रूपी थाल विचों खोज के देख लै। जिन्हां ने यह थाल विचों खोजियां हुई वस्तुआं पाइयां, उन्होंने पता लग गया थाल विच 3 वस्तु पईओ। सत संतोख विचारो अमृत नाम। बस नाम ही तो जपना सी। अमृत नाम ठाकुर का पईओ, जिसका सब सुधारो। इत्थों लै लै। गुरबाणी नूं छड्डना, गुरबाणी नूं जीवन का आधार बना के सिमरन बंदगी रज के कर। गुरु तेरी थां पर थां बांह पकड़ता रहे। बिखड़े दाम लंघावे मेरा सतगुर, सुख सहज सेती कर जाते। एक दिन वक्त आवे असी आत्मा परमात्मा के दर तक सफर तय कर चुकी होवे। भुल्ला चुकां दी खिमा। इतनी बेनती कबूल करियो। सतगुरु जी के चरणों में अरदास करियो, आपां तुसीं सारे रल मिल के सिक्खी नूं कमा सकीए। गुरु के दर ते मुख खुजला लेके जाने जोगे हो जाइए। अदब सत्कार नाल आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।